Good evening, everyone. Good evening, good evening. Ma'am, good evening. Good evening. Good evening. Can we start? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting a small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Mission to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA, sustainable growth, empowerment and creation. Purpose, helping business people, supporting economic development. Creating industrial insights, inculcating industrial development. Facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions. Enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Katta, Spot, Digital, Womenpreneur and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics,
human resource, personnel, facility, quality and many others. Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes, and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kind of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight, and it will cover topics in different categories like financial management and accounting, marketing, sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc., etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc., etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc., etc. Government policy support system and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. With this brief about the industry insights, now I request our programs coordinator to take over for introducing today's topic and the speaker. Thank you. My dear friends, जिगर जीक एक प्रसिद्ध लेखक है, सेल्समैन और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है। उनका कहना है कि अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर वे आप पर भरोसा करेंगे तो वे आपके साथ व्यापार जरूर करेंगे। My name is Navnath Devkar, founder and director of Federation of Indian Industries and Professionals। आपका इंडस्ट्री इंसाइट्स प्रोग्राम नंबर 8 में मैं दिल से स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो सेशन है वो सेशन है बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस टूल्स। इसका ये फर्स्ट पार्ट हम लोग आज आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है दोस्तों कि बिजनेस एनालिसिस एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जिस एरिया के ऊपर जो भी बिजनेस वीक है, इस एरिया में जो भी बिजनेस वीक है वो बिजनेस में भी उतना ही वीक है। दोस्तों, बिजनेस एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस एनालिसिस से हमारे बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में क्या आपने सोचा है? क्या इसके बारे में आपको पता है? क्या इसके अलावा हमारे बिजनेस में क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, इसके बारे में आपने कभी सुना है या किसी से सीखा है? दोस्तों, इसी बात को सिखाने के लिए आज हमारे साथ में है एक्सपर्ट्स सीबी कातराबा, जो एंटरप्रेन्योर है और टेक्निकल राइटर्स भी है। उनके बारे में मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जिन्होंने मार्केटिंग में पीजीडीएमए किया है, उसके साथ साथ में वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है। दोस्तों, उनके पास प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ साथ बजाज ऑटो लिमिटेड का 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग पदों के ऊपर काम किया है। उनका योजना, प्रक्रिया, तार्किक सोच, विश्लेषण, समस्या समाधान, अवधारणाओं में बहुत ही अच्छा एक्सपर्टीज वो रखते हैं। उन्होंने ग्राहक सेवा कार्य में प्रभावी प्रणालियों और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ साथ परिकल्पना और विकास में
काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने बजाज ऑटो में एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित किया है। प्रशिक्षण के लिए उन्होंने एंड टू एंड समाधान प्रदान करने के कला में उन्होंने प्रभुत्व हासिल किया है। उन्होंने टू व्हीलर टेक्नोलॉजीज में रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर 26 एपिसोड का स्क्रिप्टिंग और निर्देशन किया है। दोस्तों, जी टीवी पर प्रसारित किए गए ये सारे सेशन के साथ साथ उन्होंने 12 से ज्यादा प्रशिक्षण फिल्मों को भी विकसित किया है। बजाज ऑटो लिमिटेड में रिटायर होने के बाद उन्होंने जब सेवानिवृत्ति ली, तभी उनका माइंड उनको खाली नहीं हुआ, तो उन्होंने एक प्रो सॉल्यूशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके नामक कंपनी स्थापन की, जो कारपोरेट कंपनियों के साथ साथ एक बार बाइक्स या वस्तु खरीदी बेचने के बाद जो सर्विसेज देते हैं, आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज उनको हम लोग बोलते हैं, उसमें वो लोगों को हेल्प करते हैं। प्रो सॉल्यूशंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के साथ साथ ये सर्विसेज वो डिलीवर करते हैं, जहां से आज तक जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गैरेजेस है उनको बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिला है और उनको एक अलग तरीके का प्रशिक्षण देकर उनकी डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ वर्कशॉप जो है टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स के, उसको अपग्रेड करने की भी मदद वो कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुआ उनके पर्सनल बिजनेस के बारे में। इसके साथ साथ सीबी कातराबाद सर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के ट्रेनिंग डिवीजन को भी लीड कर रहे हैं और वो एक संचालक की भूमिका भी अच्छी तरह से यहाँ पे निभा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे डिग्निटीज को आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, जिनका नॉलेज हमारे बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमें बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो आज उनके पास से बिजनेस एनालिसिस को हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं को सीबी कातराबाद का हम लोग यहाँ पे वेलकम करें। चैट बॉक्स में उनके लिए वेलकम लिखिए। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सीबी कातराबाद के लिए हम लोग यहाँ पे वेलकम करने वाले हैं। सीबी कातराबाद सर, आपका मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के इंडस्ट्री इंसाइट्स का 8वां सेशन आप यहाँ पे ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो लोगों को आज मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट चार्ज आपके पास हैंड ओवर कर रहा हूँ। प्लीज सीबी कातराबाद सर। Thank you so much, sir, for this rather more than brief introduction. And friends, I welcome all of you for this today's session. जैसे अभी नवनाथ जी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, उन्होंने इतना अच्छी तरह, मतलब अभी आपका एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बहुत ही ऊपर लेके गया है। So I'm sure I will live up to that expectation and deliver this session purposeful and meaningful. जैसे आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बिजनेस एनालिसिस टूल्स। जैसे शुरुआत में नवनाथ जी बोल रहे थे कि कोई भी बिजनेस में अगर हम वीक है, कोई इश्यूज है, तो इम्प्रूवमेंट उतना ही बिजनेस भी, अगर हम वीक है तो उतना बिजनेस भी वीक हो सकता है। वो डेफिनेटली सही बोला है, इट इज एब्सोल्युटली राइट थिंग। बट एनी बिजनेस टुडे व्हाट एवर वी आर गोइंग टू टॉक, आज जो भी हम बात करने जा रहे हैं, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बिजनेस, इट इज इन आवर पर्सनल लाइफ आल्सो। हमारा जो निजी जीवन है उसमें भी इसका फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि जहां जहां इश्यूज है, जहां जहां प्रॉब्लम्स है, वहां हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट? एनालिसिस मतलब विश्लेषण। See, wherever there is a problem or there is an issue, we need to analyze and understand what are the reasons and all, and consider certain actions to improve upon. So today we are going to talk on this particular topic. आज जो बिजनेस एनालिसिस टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसमें मैंने 3 मुद्दा लिया है यहाँ पे। जो 3 मुद्दे हैं, सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस टूल। आई थिंक कुछ लोगों ने ये पहली बार नाम सुना रहेगा, या ये टूल कोई स्पैनर है, कोई स्क्रू ड्राइवर है, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट?
anything we use as a method or some helping element, that definitely becomes a tool. Okay. Then various business analysis tools. कौन से प्रकार के business analysis tools है, we'll discuss on that. And brief में being a basic talk is because अगर हम हर एक टूल को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. समटाइम्स एक एक टूल का बारे में एक एक दिन का प्रोग्राम होता है, बट डेफिनेटली that's why we have called it as a basics of business analysis tools. I mean, definitely I will try to explain what is this tool and how it can be used it. Okay. तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि what is business analysis tool, मतलब ये बिजनेस को विश्लेषण करके देखने का टूल मतलब क्या है. सो विद इन दैट सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालिसिस. करेक्ट. एनालिसिस का मतलब क्या होता है. See, analysis is that process wherever there is an issue or there is a problem, you need to break up into small parts to understand what is exactly the reason, so that if you understand clearly, then you can think on the improvement action. जो बिजनेस का एनालिसिस का यानी विश्लेषण का मतलब यह है कि कोई भी समस्या है, यानी मेरा बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मेरा सेल नहीं हो रहा है, मेरे कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं. बिजनेस देखिए, जैसा अभी आपने देख रहे थे कि इंडस्ट्री इनसाइट के बारे में जब बात कर रहे थे, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट सो मेनी फंक्शंस एंड सिस्टम्स. within that there are so many procedures and there are so many links, and there is a internal customer, there is a external customer. अंदर के कस्टमर होते हैं, बाहर के कस्टमर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं. इन सभी को परफॉर्म करना होता है तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि सेल्स नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं, राइट, या कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं, या रिजेक्शन बढ़ रहा है. सो एनी प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर, you need to do analysis thoroughly so that you can find out some solution to improve upon. मतलब आपको माइन्यूट लेवल पे विश्लेषण करके छोटे छोटे उसमें रीजंस ढूंढने पड़ेंगे ताकि उनके ऊपर आप सही ढंग से एक्शन लिया जाए और सुधार करें. राइट, दैट इज व्हाट एनालिसिस मीन्स. एंड डेफिनेटली वो करने के लिए जो हम व्हाट इज टूल, देन जो एनालिसिस टूल का मतलब क्या है, एक मेथड है, एक जरिया है, which will help you to carry out the analysis, okay, by data or some parameters, which that helps to take appropriate actions for improvements. मतलब टूल मतलब क्या है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, मैं हर महीना इतना गाड़ी बेच रहा था, हर महीना इतना टीवी बेच रहा था, अभी इतना टीवी कम हो गए हैं. देन व्हाट आर दोस रीजंस, कौन आते हैं, कौन से टाइप के कस्टमर्स आते होंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो हर एक प्रकार का समस्या के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स. इवन फॉर दैट मैटर हमारे लोग काम नहीं करते हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका परफॉर्मेंस वीक होते जा रहा है, देयर परफॉर्मेंस इज गेटिंग डिटोरेटेड डे बाय डे. इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, देन व्हाट आर दोस रीजंस, एंड इज इट अ पर्सनल प्रॉब्लम और इज इट अ मेथड प्रॉब्लम, इज इट अ प्रोसीजर प्रॉब्लम, or is it a input problem, or is it a machine problem? We don't know, but performance is getting deteriorated. एक ह्यूमन बीइंग्स का, आदमी का भी, खुद का भी हम अपना परफॉर्मेंस अगर कम हो रहा है तो हमें भी झांक के देखना पड़ेगा कि यार मुझ में क्या कमियां है. मैं पहले इतना परफॉर्म करता था, इतने एक्टिविटीज करता था, इतने जॉब्स निकालता था, बट टुडे आई एम नॉट एबल टू डू दैट. इफ आई एम ए सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन, I was selling so many vehicles, I was contacting so many customers, right, I was doing so many activities, events, but today it's not happening. तो like that it is a personal, सुधा आदमी भी हम इसमें पर्सनल लेवल पे भी एनालिसिस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बिजनेस मतलब लोग है, लोग के बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता, वेदर कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो या मालिक हो. इस सभी के बारे में भी हमें देखना बहुत जरूरी है. दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच, so that we will understand what are those tools and how to make use of them. अभी वेरियस एनालिसिस टूल कौन से हैं, तो मैंने यहाँ 9 टूल्स का लिस्ट किया है, right, but there are so many other tools are also, we cannot cover all those things. Even for the day also we are not able to cover all the 9. That's why I have put as a part 1. part 1 में हम ये 4 टॉपिक आज देखने वाले हैं. ठीक है. The first one is SWOT analysis,
The second one is Johari window. Gantt chart is not exactly a tool, but of course, to implement a business things or implement project, there is a tool. यानी business के लिए कोई भी process, system, problem जो भी contribute कर रहा है, we have to use certain tools to improve upon that. Correct? तो उसको हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना जरूर है, जो भी मतलब एक सुटेबल टूल होता है उसके हिसाब से. तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, SWOT SWOT analysis. Okay, I don't know how many of you have heard. Can anybody just tell me in the chat box how many of you know or heard about SWOT analysis? I'm sure मैक्सिमम लोग शायद जानते होंगे. चैट बॉक्स में आप टाइप करिए यस यस यस, इफ नो नो टाइप करिए, नथिंग रॉन्ग. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, हम इस दुनिया में आए तो हर चीज हमें पता होना चाहिए. या डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी हाउ मेनी पीपल नो दिस SWOT analysis. Please type yes. If no, you type N quickly. अगर आपको पता है तो आप Y और yes टाइप करिए, अगर पता नहीं है तो N टाइप करिए, नो. So people are not responding. Mr. Manoj Kumar only reply किए हुए हैं. Yes, Sucheta ma'am knows it. Okay. Anybody else? राजेश्री जी यस, अनुपम जी Yeah. यस, सुचिता जी यस, Good, शशिधरन good, जी यस, good, good. मनीष कुमार जी यस, सपना जी यस. Very nice. Great, great, great. Very nice. Okay. Your people, you know about it, and we'll try to put into a compact way further. It will be a refresher kind of program for those who knows that. Usually is the no. Okay, somebody is there, no also. Hmm. Okay, fine. See, SWOT का मतलब SWOT का मतलब ये है, S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. Okay, यानी S strength means हमारे पास क्या खूबियां है. अगर इसको मैं थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में दे दूं, देखिए ऐसा ये क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में इसको रखा जाता है, so that you can list out all those strength, weakness and opportunities and threats, parameters or findings, whatever you find. This is the way we do that. आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसा स्ट्रेंथ मतलब मेरा खूबियां क्या है या मेरे पास क्या ताकत है, वीकनेस ऑफ कोर्स क्या कमजोरियां हैं, देन अपॉर्चुनिटीज, मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, संधियां जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं, एंड थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब मुझे किस चीज का डर है या मुझे किसी का कुछ ऑब्जेक्शन है. So for any business, okay, business हो या personality हो, one need to do this SWOT analysis. हर एक को ये करना बहुत जरूरी है. अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं या मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मेरा जिंदगी में अगर एक कोई गोल है या उद्देश्य है, जिंदगी का मकसद है, अगर मकसद है तो ये SWOT एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि you will come to know whether I am capable or not. If I am not capable, what kind of issues are with me, क्या कमजोरियां है, हम उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं. तो मतलब SWOT एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ही यही है, मकसद ही यही है. ये जो टूल है, इस टूल इस्तेमाल करने का पर्पस ही यही है कि हम अपने खुद के जो ताकत है या खूबियां है वो हमें देखना, अंडरस्टैंड करना है, कमजोरियां क्या क्या है अंडरस्टैंड करना है, या प्रॉब्लम्स क्या क्या अंडरस्टैंड करना है, देन हमें क्या क्या ये चांसेस मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी हैव. मेरा मान लीजिए मुझे कोई लीडर भी बनना है, दैट इज आल्सो माय गोल, राइट. या मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है, दैट इज आल्सो माय गोल. या मुझे कोई प्रोफेशनल बनना है, CA है, CS है, व्हाटएवर इट इज. ओके, so you need to do a SWOT analysis, and objective is that identify your own strength and weaknesses and closely examine the opportunities and threats, okay, in achieving your goal. And of course जिंदगी का मकसद खुद का हो सकता है या प्रोफेशनल बनने का हो सकता है या बिजनेस में हो सकता है या
पैसा कमाने का जरिया के लिए हो सकता है या फैमिली के लिए हो सकता है। फैमिली गोल मतलब क्या है, मेरा एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, कार होना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, बेटी डॉक्टर होना चाहिए। सो दिस आर ऑल फैमिली गोल्स। सोशल गोल्स मीन्स वन वांट्स टू बिकम अ लीडर, राइट, या मतलब सोशल काम करना है सोसाइटी के लिए, पॉलिटिकल प्रोफेशन लेके जाना है। सो दैट कैन बी अ गोल, राइट। सो गोल कैन बी आउट ऑफ दिस। सो देन यू नीड टू डू अ स्वॉट एनालिसिस। तो अभी इनका थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वीकनेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेंथ मीन्स। स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट एडवांटेजेस डू यू हैव, मतलब मुझे क्या क्या मेरे एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा है। इफ आई एम थिंकिंग टू डू से आई वांट टू ओपन अ डीलरशिप, dealership of automobile, dealership of electronics, dealership of agro products, whatever it is, agricultural product हो सकता है, या for that matter somebody has completed their CA, then he wants to open his own business. Instead of doing a job, he wants to open his office to offer CA services or CS services. Then मुझे मतलब मैं किस चीज में बेहतर हूं, वो मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा वो खूबिया है। मतलब मेरा पर्टिकुलर जो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस और गोल आई एम सेटिंग फॉर माई सेल्फ, इन दैट एम आई डूइंग वेल। इफ आई एम डूइंग वेल, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। इफ आई एम नॉट डूइंग वेल, दैट फॉल्स इनटू वीकनेस, करेक्ट। देन व्हाट रिलेवेंट रिसोर्सेस डू यू हैव टू एक्सेस टू, मुझे ये चीज करने के लिए पैसा खुद का है या लोन लेना पड़ेगा। इफ आई वांट टू गेट अ लोन, एम आई मतलब एलिजिबल टू गेट द लोन, और द बैंक्स आर इजीली एक्सेसिबल टू मी, बैंक से मुझे मिलने लायक मेरा हैसियत है क्या, राइट। या मुझे कुछ और कैपेबिलिटी चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो वो मेरे पास है क्या। तो दिस काइंड ऑफ थिंग। सबसे आसान एक है, व्हाट डू अदर पीपल सी एज, राइट, योर स्ट्रेंथ। यानी आपको देखते हुए ना, समटाइम्स ये हमारा जिंदगी में होता है, नॉर्मली पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ ऑन फेस, मोस्टली नेगेटिव, दे डोंट टॉक ऑन फेस। बट यार ये बड़ा अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारा इवन फॉर दैट मैटर तुम लॉजिकली बहुत अच्छा सोचते हो यार, तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत ये है, तुमको ये मतलब पॉलिटिकल नॉलेज बहुत है, you keep always updated about the country and the events and the happenings। तो जो लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, that is your strength, okay, nobody has to tell that, okay, these are the strength parameters। इसके अलावा if I want to list down, the laundry list will go down, okay, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, but I have just quoted here few of the examples, okay। On the other hand, what are the weaknesses, मुझे ये समझ लेना पड़ेगा। एंड सबसे टफेस्ट जॉब है ये, the most toughest job is to list down my weaknesses, because it is very hard to agree कि I am weak in this area। It's a human tendency, it's a human behavior, okay। But still, honestly, if you have to be very honest, if one wants to do SWOT analysis, हमें बहुत ही ईमानदार खुद के साथ होना जरूरी है। If you're not honest with yourself, you will not be able to do the analysis properly। तो वीकनेस साइड मतलब मेरे पास क्या कमियां हैं, मेरे पास नॉलेज का कमियां है, या स्किल का कमियां है, या फाइनेंस का कमियां है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियां है। जो भी आपका गोल क्या है, उस गोल को जो लगने वाली चीजें हैं, इनफैक्ट, राइट, वो सारी चीजें अगर आप लिस्ट आउट करेंगे, सम विल गो टू स्ट्रेंथ, सम विल गो टू वीकनेस, एंड यू हैव टू क्लियरली राइट डाउन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको क्लैरिटी लेने के लिए यू हैव टू लिस्ट डाउन व्हाट कुड यू इम्प्रूव। आपको क्या चीज लगता है कि मुझे ये सुधारना जरूरी है। अपने आप को कभी कभी लगता है यार आई एम नॉट एबल टू टॉक विथ पीपल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आई नो दैट, करेक्ट। तो ये आई एम नॉट गुड एट अकाउंट्स, मुझे मतलब बिजनेस का हिसाब किताब मुझे अच्छा नहीं है, तो मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज योर वीकनेस। एंड कुछ चीजें आप बहुत खराब करते हैं, यू आर नॉट गुड एट इट, because whenever you do that, you are not मतलब doing good। people say ये क्या कितना खराब है यार, आपको तो पता ही नहीं है, आप इतना
एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, या आप ये चीज जो मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलरशिप लेना चाहते हैं वो आपको पता है कि मार्केट साइज क्या है। सो जो चीज आप अवॉइड करते हैं वो आपका वीकनेस होता है। ओके, सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मीन्स हमें जो चांस मिलते हैं जिंदगी में, तो पर्टिकुलरली आपका जो गोल है, आपको क्या करना है। somebody wants to, I find today some one or two our two-wheeler workshop owners are there in this audience group. If that guy want to open a good workshop, then उसको opportunities क्या क्या है, is there a market, right, potential? If he wants to start in service center, right, वहां पे क्या गाड़ियां है उस एरिया में इतने जो मेरे पास सर्विसिंग के लिए आने के लिए, तो दैट इज व्हाट ही हैज टू सी एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। व्हाट आर द फेवरेबल ट्रेंड्स यू आर अवेयर ऑफ, कि ठीक है फेवरेबल यानी मुझे मदद करने वाली चीजें क्या क्या हो सकते हैं, कि मुझे गाड़ियों के बारे में ट्रेनिंग मिलना चाहिए, वो मुझे अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेनिंग मिलने का, राइट। तो opportunities come from changes in technology, changes in markets, changes in government policy, right? Opportunity always depends upon these three major elements. देखिए जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो मार्केट में कुछ अलग चीजों का जरूरत बढ़ जाता है। Immediately, if the technology gets obsolete, the new technology means there is a potential, of course. जैसे आप हर चीज का एग्जांपल देखिए, मोबाइल्स अगर आप देखेंगे, शुरुआत में जो छोटे छोटे मोबाइल्स आते थे जो मतलब टच स्क्रीन वाले नहीं थे, फिर आहिस्ता टच स्क्रीन आ गए, within that there are so many configurations, right, so many apps and the 3G 4G, right, today 5G is coming. तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटीज होते ही है। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी एग्जांपल, देयर इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज कमिंग आउट। अगर किसी को ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में अगर बिजनेस करना है एज अ प्रोफेशन, एज अ ट्रेनिंग सेंटर, वट एवर इट इज, इफ यू वांट टू गेट इनटू अ बिजनेस मॉडल और अ प्रोफेशन मॉडल, राइट, देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन फ्यूचर बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग सो मच सो ऑन स्किल डेवलपमेंट। कुछ साल पहले उन्होंने अपना एक आर्मी बना दिया, आर्मी मीन्स एक विभाग बनाया उन्होंने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। विद इन दैट देर आर अराउंड 27 सब काउंसिल्स। एनएसडीसी जो है ये तो नेशनल लेवल का एक बॉडी है। विद इन दैट डिपेंड अपॉन द सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में, ऑटोमोटिव, विद इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव सेक्टर इज डिफरेंट, ओके। तो अलग अलग 27 सेक्शंस है, सो दैट फोकसली दिस पीपल कैन लुक इनटू हाउ टू अलाइन द एजुकेशन इन द इंस्टीट्यूशंस विद द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर ये चेंज हो गया, नए एजुकेशन पॉलिसी लेके आ गए, तो फोकस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट। I heard today for even BA, BCom, there must be one skill-oriented subject for them, जो आज तक था ही नहीं है। Forget BA, BCom, the technical institutions are still they are teaching the old syllabus, before independence वाला syllabus आज भी सिखाते हैं। Then how these people can, sorry, how these people can match the industry performance? So there is a huge scope for trainings and skill development business. So this is what an opportunity. Threat का मतलब क्या है? What are the obstacles do you face? यानी मुझे क्या दिक्कतें आ सकते हैं? That is your threat. वो डर है यार, मैं करना चाहता हूं बट ये प्रॉब्लम मतलब ये इश्यू हो सकता है। Then education मेरा बहुत पोटेंशियल है, मेरे पास जगह है, बट आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, right, that is a weakness. But communication मेरे पास बेहतरीन है, मेरा strength है, but there are already so many people in the market. Then competition is a threat, correct? So do you have a bad debt or cash flow problem? यानी आपका ऑलरेडी इतना पैसों का ये है लेन देन है,
तो वो भी एक डर है, मुझे लोन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ओके, दो इट इज अ वीकनेस पॉइंट, लोन नहीं है बट ऑलरेडी ओवरलोडेड है। इफ यू आर क्लीन, यू डोंट हैव एनी डेट, देन फाइनेंस इज अ वीक पॉइंट, but you are already overloaded with debt, then it's already threat because you won't get a further loan. तो इस प्रकार ये आपको जितने भी ऐसे लगते हैं, ये लिस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऑफ कोर्स लिस्टिंग करने के बाद करना क्या है, व्हाट इज दैट? सो important thing is whatever you list out, once you come to know okay, these are my strength, ठीक है, these are all my strength and these are my weaknesses. My job is, first job is, how can I convert all these weaknesses into my strength? ये मेरा काम है। I have to work on this. मुझे मेरे कमजोरियां के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आई हैव टू गो फॉर स्पीकिंग क्लासेस, ढंग से बात करने का सीखना है, राइट? इफ I am not aware about the product which I want to do a business, then I have to undergo practical training on that particular product, understand the technology. So like that. So what if you have finance, then okay, I have to manage through loans. I have to find out what I can do my collaterals. You have to get into. Any education नहीं है, I have to learn. या मेरे पास फाइनेंस नहीं है तो I have to arrange for the लोन्स। तो जितना भी मेरा वीकनेसेस है मुझे उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ओके, देन जो थ्रेट होता है, थ्रेट को कभी भी मुझे डर ये समझना नहीं है, उल्टा वो कंपटीशन, फॉर एग्जांपल कंपटीशन इज अ गुड टूल टू इंप्रूव योरसेल्फ बिकॉज यू नो हाउ फार बेटर दे आर। कंपटीशन क्या अच्छा कर रहा है ये पता है, उससे अच्छा क्या करना है वो सोचना है। यानी थ्रेट को हमेशा मुझे इधर देखना है, आई हैव टू कंसिडर एज एन अपॉर्चुनिटी और आई हैव टू अगेन कन्वर्ट दैट आल्सो इनटू माय स्ट्रेंथ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये बिजनेस में भी, राइट? इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, जैसा मैंने एग्जांपल दे रहा था, तो उस बिजनेस में हमने लिस्टिंग किया, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, then I have to work on these right side parameters, that is weakness and threat, and convert them into strength or opportunity. Of course weaknesses will get converted into strength and threat may go to strength or it may go to opportunity. ये दोनों बॉक्स खाली करना है, then only will become a complete suitable personality or a businessman. जैसे अभी हमने लिस्ट आउट किया था, देखा, देखिए जैसे कि स्ट्रेंथ चीजों क्या है, ये हमेशा हमें फायदे के होते हैं, बेनिफिशियल है और वो मोस्टली इंटरनल होते हैं, ठीक है। देन वीकनेस जो है विच इज डेट्रीमेंटल, मीन्स ये थोड़ा परेशानियां वाला होता है, ठीक है ना, ये त्रासदायक चीजें होते हैं। क्या वीकनेसेस होते मतलब ये हमें नुकसान पहुंचने वाले पैरामीटर्स होते हैं, तो वो भी मैक्सिमम हमारे इंटरनल रिलेटेड होते हैं। सो दैट इट इज एसेंशियल, इनको हमें बेनिफिशियल करना बहुत जरूरी है। ओके, सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज बाहर से होते हैं बट वो हमें बेनिफिशियल होते हैं। इफ यू सी अबाउट opportunity is beneficial, right? Here it is beneficial. Of course it is external most of the time. Similarly threat जो है ये नुकसानदायक है, detrimental means नुकसानदायक, okay? एंड इवन मोस्टली बाहर के थ्रेट होते हैं, खुद के बहुत कम होते हैं। इंटरनल जो है ऑर्गेनाइजेशन बोलिए ये है, तो ये एक्सटर्नली होते हैं। सो दिस इज व्हाट सॉर्ट यू हैव टू लिस्ट आउट एंड अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ। अभी हाउ टू यूज इट, आपको देखिए ऐसा एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स बना के जिसमें आपने 4 क्वाड्रेंट बनाया है, यू हैव मेड 4 क्वाड्रेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यू हैव रिटन। देन यू हैव टू लिस्ट ऑन एंटायर थिंग, व्हाट सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन गोल। नेक्स्ट, मुझे जिंदगी में करना क्या है, मेरा ये बिजनेस करना है या मेरा प्रोफेशन करना है, राइट?
whatever it is, you have to decide your goal. That goal has to be very very specific. ऐसा नहीं है कि सपना नहीं रहना चाहिए. सपना और गोल, उद्देश्य या मकसद, दोनों में काफी अंतर है. सपने बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट उनमें से चुन के सबसे पहले मैं क्या हासिल करना चाहिए, यू हैव टू नोट डाउन दैट एंड स्पेसिफिकली कितना दिन में मुझे वो करना है. एक आपको प्लेन पेपर लेना है, सबसे ऊपर में लिखना है जिंदगी का मकसद लिखा. वो मकसद कितना होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ओपन अ इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप, राइट, यानी टीवी फ्रिज जो ये करते हैं. तो मुझे अगर ये कितना दिन में करना है, यू हैव टू फिक्स अप नेक्स्ट 6 month 1 year, ठीक है, क्लियर कट, डेडलाइन ओरिएंटेड होना चाहिए. कितना मतलब लेवल का वो बिजनेस करना है. जैसे कैटेगरीज होते हैं, जैसा आई बीइंग वर्कड इन ऑटोमोबाइल, वो हमारे डीलरशिप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के भी आउटलेट्स होते हैं कंपनी का. एक होता है छोटा डीलर, अथोराइज सर्विस डीलर बोल के रहता है. ही इज अथोराइज बाय कंपनी फॉर 2 years सेल्स एंड सर्विस. देन देयर इज अ 3 years डीलर हु इज अथोराइज टू सेल द व्हीकल, सर्विस द व्हीकल्स एंड सेल द पार्ट्स. तो 2 years वाला है इज ओनली सर्विस एंड स्पेयर्स, एंड 3 years वाला vehicle sales, service and spare parts. Then there is a distributor also who is having a huge turnover of crores and crores for spare parts. So I have to decide कि dealership मतलब what kind of dealership. या जिंदगी में मुझे कार लेना है. For example, if I talk about personal goal, I want to take a car, buy a car. तो simple I want to buy a car लिख के नहीं चलता है. आपका दिमाग में ये यहाँ पे बैठना चाहिए कि विच कार, कौन सा कलर का होना चाहिए, यहां तक आपको लिखना जरूरी है. देन ओनली इट बिकम्स योर टारगेट और गोल. अदरवाइज वो सपना है, मुझे कार लेना है यार, देन क्या करेंगे, उसके ऊपर तो काम ही नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट 6 month में एक नया मॉडल आता है. नया मॉडल आने के बाद यार इसको लेना है, तो पिछला 6 महीने वाला छोड़ देते हैं, अगला 6 महीने में नया आता है, उसके पीछे भागते हैं यार. Another 6 months down the line, you will find another very beautiful model. Then we always dream about that car. So we hardly work on that. So if I want to buy a car, I have to be very specific. I want to buy XYZ companies ABC model. ठीक है ना? Then by when I want to buy it in next 2 years, 3 years. वो गोल हो गया. It has to be specific. Then you start listing, मेरा strength क्या है आज, मुझे अगर कार लेना है. Same example for business also, मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है. वॉल्यूम बढ़ाना है, बिजनेस में घुस गया. एक्चुअली ये सबसे बेस्ट टूल है टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस. अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो ये मस्ट है. SWOT एनालिसिस इज अ मस्ट. ओके, SWOT एनालिसिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस. तो सिमिलरली जैसा हमने ऑलरेडी बात किया है वो चीजें इसमें आपको लिस्टिंग करना है. देन इधर की चीजें इधर लेके आना है, राइट. जो वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ में लेके आना है, थ्रेट को स्ट्रेंथ में और अपॉर्चुनिटीज में कंसीडर करना है. ठीक है. सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक बार ये लिस्टिंग हो गया तो हमें हमारी जो खूबियां है उसको बहुत जोर से मतलब शिद्दत से इस्तेमाल करना है. खूबियां जो स्ट्रेंथ्स है, मेरे पास जो भी पावर है, आई हैव टू यूज वेरी इफेक्टिवली. वेरेवर आई सी अपॉर्चुनिटी आई हैव टू ग्रैब इट. जहां जहां मुझे वो चांसेस मिलते हैं उसको इमीडिएटली ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है. देखिए, अगर डीलरशिप का लेना है तो अगर आप वो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है उस डीलरशिप में, टू सर्टन लेवल, फ्रॉम सुपरवाइजरी लेवल टू यू हैव बिकम अ वर्क्स मैनेजर लेवल, then so many company officers they come to that dealerships. कोई भी कंपनी के, जिसने भी सैमसंग का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका डीलरशिप रहेगा तो सैमसंग के जो ऑफिसर्स आते रहते हैं हमेशा. तो उस डीलरशिप में अगर आपने एक अच्छा पोजीशन में रहेंगे तो you have to find out that opportunity. You have to always keep on interacting with that company officer. If you are good at your things, you have to show those strengths so that that person will always keep in mind, this is the right guy, this is the right guy. ये ऐसा, ये बढ़िया बंदा है, ये काम का बंदा है, ऐसा
महसूस होना चाहिए. And as I already told, convert all the weaknesses into strengths, and finding threats as an opportunity is very, very important. Then only it will enable you to achieve your goal. Okay. So this is on about SWOT analysis. I hope this tool I have explained well. Can you chart in the chat box? अगर आपको समझ में आ गया तो yes, why, और yes, yes, yes. Please. Good. Anybody else? Any doubt? Of course, we will take a question answers later. Shantanu Rasti is saying yes. Rajeshri is saying is yes. I am finding limited messages here. No problem. Okay. Yeah. Okay. Good. All right. We'll go to next topic, which is another important topic, which can be again used for personal analysis and business analysis both. This is something called Johari window. I hope again similar to SWOT analysis, आपने जोहारी विंडो के बारे में सुना रहेगा. What is Johari window? Johari window is actually invented by two guys who are specialists in behavioral science research, यानी human personality research करने वाले दो महान हस्ती थे. One was जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंग्राम. ये दोनों बंदे ने इसको ये इन्वेंट किया है 1950 में. ओके. तो ये जोसेफ का जो लिया है और हैरिंगटन का हैरी लेके जोहारी ऐसा नाम दिया है. बड़ा इंडियन लगता है बट इट्स नॉट अ इंडियन नेम. ठीक है. तो ये दोनों मिलके इसको बनाए. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज दिस विंडो. एक्चुअली इसमें 4 ग्रिड आता है, सिमिलर टू स्वॉट एनालिसिस. जैसे 4 बॉक्स है वैसे ही है, बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड टूल टू डू सम एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट पोजीशंस, मार्केट रिसर्च और मार्केट कंपैरिजन और प्रोडक्टिविटी वर्सेस परफॉर्मेंस. बिजनेस में जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो प्रोडक्शन एंड रिजेक्शंस, इसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं. आई विल टेल नेक्स्ट. ओके. बट लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ दे हैव स्टार्टेड इट. ओके. तो एक बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग में 4 कमरे हैं, तो ये 4 बॉक्स है रादर. ओके. ये चारों बॉक्स के लिए खिड़कियां है यहाँ पे. इफ यू आर लुकिंग एट माय कर्सर इज विजिबल टू यू. Yes. Okay. So a one side of the building, you are standing here. The other side, other people are standing here. Okay. जैसे कि अगर ग्राफ में हम देखेंगे तो क्या होता है, ग्राफिकल लाइन ऐसा होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है. वैसे इधर का वर्टिकल लाइन समझ लीजिए, यहाँ पे दूसरे लोग हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो बॉटम में है ये आपका लाइन है. तो क्योंकि आगे ये ग्राफिकल लैंग्वेज में ही हमें सीखना होता है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग हियर. तो हर एक बंदे का, अगर मैं इसको ह्यूमन बीइंग के बारे में एनालिसिस का हिसाब से बात करूं, इफ आई वांट टू टॉक ऑन अ पर्सनालिटी, ये जो बॉक्स है, 1 नंबर वाला बॉक्स, इसमें जो भी क्वालिटीज रहते हैं, इफ आई वांट टू टॉक, ये बहुत ही बेहतरीन टूल है मैन पावर का एनालिसिस करने के लिए, मैन पावर को एक दूसरे में समझ लेने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है. तो मेरे पास जो भी क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज अगर मैं यहाँ 1 नंबर बॉक्स में मैं लिस्ट आउट करूं, ठीक है, मेरे कुछ गुण होते हैं ना आदमी के, जो क्वालिटीज होते हैं, तो ये इस खिड़की से मुझे भी दिख रहे हैं. करेक्ट. और इधर जितने भी लोग खड़े हैं उनको भी दिख रहा है. Am I right? So ये जो मेरे खूबियां होते हैं ये ओपन है, पब्लिक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड सिंगर, आई सिंग ऑन स्टेजेस, आई सिंग इन द फंक्शंस, और आई एम अ गुड डांसर, सो आई डांस इन फंक्शंस, राइट. सो आई नो एंड अदर पीपल आल्सो नो. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ओपन विंडो और
पब्लिक विंडो. ओके, सिमिलरली इस बॉक्स में जो भी गुण रहेंगे, बॉक्स नंबर 2 में, इसमें जो भी गुण है मेरे, वो मुझे नहीं दिखते हैं क्योंकि बीच में दीवार है. ये इस खिड़की से मैं देख नहीं सकता, बट दूसरे वाले जो इस बाजू खड़े हैं, दे आर एबल टू सी. करेक्ट. सो यहां पे मैं अंधा हूं खुद के लिए. आई डोंट नो कि मेरे पास ये भी गुण है, बट लोग जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट वेरी नाइस, बट मुझे ये पता नहीं कि मेरा हैंड राइटिंग दी बेस्ट है. या बाथरूम सिंगर्स, some people, they in the morning they sing very nice in the bathroom, but outside they never sing because they don't know कि I am so good singer, मैं बहुत बेहतरीन गायक हूं, ऐसा उनको लगता ही नहीं है. ऐसे ही मतलब कैजुअली बाथरूम में गाते रहते हैं, जो बट बाहर का जो सुनता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है. तो ही नोज यार ये बंदा अच्छा गाना गा सकता है. तो ऐसा जो गुण है मेरा या कैरेक्टर है, दैट इज ब्लाइंड. मतलब आई एम ब्लाइंड बट अदर्स they know. Similarly, तीसरा वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर जो भी मेरे कैरेक्टर्स, मेरे क्वालिटीज, मेरे गुण होंगे, those are seen to me. I know, it means मुझे पता है, बट इधर का लोगो जो दूसरों को दिखता ही नहीं है बिकॉज बीच में दीवार है. मतलब ये छिपा हुआ गुण है, मैं उनको छुपा के रखता हूं मेरे पास. मैं दूसरों को कभी एक्सपोज भी नहीं करता, बात भी नहीं करता. दोज आर माई क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी क्लियर है, चोरी करना. चोरी करना आदमी ओपनली बोलता नहीं किसी को, राइट? ही हाल नेवर सेज अनलेस अनटिल ही इज कॉट रेड हैंड, राइट? तो लाइक दिस देयर आर मेनी क्वालिटीज व्हिच आई नो, राइट? झूठ बोलना दूसरों को, मतलब कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, इधर का उंगली का इधर तुक्का लगाना. तो दोज काइंड ऑफ क्वालिटीज आई एम ओपनली इफ डूइंग, दैट इज पीपल दे नो. बट आई समटाइम्स quietly do these things, right? People don't know, they are believing you. And there are certain set of qualities or characters, right? 4 नंबर का जो कमरा है, वो उसको खिड़की जो है हमको दिखता ही नहीं है. वो यानी उसके अंदर न मुझे पता है न दूसरों को पता है, वैसे क्वालिटीज होते हैं. सो दैट्स व्हाई द विंडोज ऑफर्स द वे ऑफ लुकिंग एट हाउ पर्सनालिटी इज एक्सप्रेस्ड. हर एक बंदा इंडिविजुअली कैसे दुनिया के सामने बिहेव करता है, उसके लिए इन्होंने शुरुआत में ये विंडो बनाया था, 4 विंडो, जोआरी विंडो. ऑफ कोर्स लेटर ऑन इट हैज इवॉल्व्ड इनटू बिजनेस एनालिसिस टूल बोल के. तो जैसा अभी हम देख रहे थे, ओपन का मतलब नोन टू मी एंड अदर्स, राइट? दिस ओपन है, मुझे भी पता है, दूसरों को भी पता है. ब्लाइंड मीन्स नोन टू अदर्स बट नॉट टू मी. मतलब मैं अंधा हूं, मुझे पता ही नहीं यार मेरे पास एक खासियत है, बट लोग जानते हैं, ये उनको लगता है कि मैं ऐसा हूं. अननोन, ऑफ कोर्स नन ऑफ अस नो. हिडन इज आई नो बट अदर्स डोंट नो. तो यही मतलब जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि ओपनली नोन एंड टॉक्ड मे बी सीन एज अ स्ट्रेंथ और वीकनेस. एक कमजोरी भी हो सकता है, राइट? ओपनली जो है कमजोरी हो सकता है या खूबिया भी हो सकता है. देन द सेल्फ दैट वी चूज टू शेयर विथ अदर्स. तो खुद होके हम दूसरों से बात करते हैं, वो चीजें ओपन कैरेक्टर्स होते हैं. जो चीजें दूसरों को पता है और मुझे पता नहीं है, तो वी ऑब्जर्व दैट वी डोंट नो अबाउट इट. हमें लगता है हमें पता नहीं है, बट अगेन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट विल अफेक्ट द वे अदर्स एक्ट टुवर्ड्स अस. जो हमारे बारे में वैसा सोच रहे हैं, उसको वैसा लग रहा है, वो फैक्ट है या नहीं है, वी डोंट नो. वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, वी डोंट नो, बट दे आर थिंकिंग. इफ दे आर थिंकिंग नेगेटिव, इट विल इफेक्ट ऑन अस. दो इफ दे आर थिंकिंग पॉजिटिव आल्सो, इट विल इफेक्ट ऑन पॉजिटिव सेंस ऑन यू. हिडन जैसे मतलब वी नो आवरसेल्फ हिडन फ्रॉम अदर्स, राइट? जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, ये अननोन इज किसी को भी पता नहीं है. तो ये मतलब एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते कि ये ग्राफिकल लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है. आई हैव रिटन हियर अगेन दैट दिस इज एग्जैक्टली अ जोआरी विंडो which is having 4 quadrants. It is a 4 quadrant
जोहारी विंडो या 4 बॉक्स वाला जोहारी विंडो है। मैंने ग्राफ के लिए इसीलिए बोला, तो ग्राफ में हमेशा ये इसको जो बॉटम लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, दोनों जहां पे मिलते हैं यहाँ पे हमेशा ये 0 रहता है। जैसे ये लाइन आगे बढ़ते रहता है ये उसका वैल्यूज बढ़ते रहते हैं। इधर कभी वैल्यूज ऊपर जैसे जाएगा वैसा बढ़ते रहता है। हम अभी एग्जांपल लेंगे पर्सनालिटी का। एक बंदा ऐसा है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन में उसका बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत ही बेहतरीन है। ही इज वेरी वेरी गुड एट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हमारा खुद का कंपनी में एक एम्प्लॉई है कि मैनेजर भी हो, नाउ द एमडी इज इवेल्युएटिंग दिस पर्सन, बट हिज नॉलेज एंड स्किल जो है उसका बारे में, यानी देयर आर 2 पैरामीटर्स, बिहेवियर मींस एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल का, ये 2 पैरामीटर के ऊपर हम जोहारी विंडो हम मैपिंग करके लोगों को यहाँ पे प्लेस करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी इस बॉक्स में बिहेवियर क्या रहेगा बंदे का, ये बॉक्स नंबर 1 में, ठीक है। नाउ इट इज नथिंग टू डू विथ नोन अननोन एंड ऑल। अभी हमें उनका क्वालिटीज जो हमें दिखते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर एंड एटीट्यूड ये खुला दिखने वाली चीज है। परफॉर्मेंस, नॉलेज एंड स्किल, दिस इज व्हाट मेजर्ड थिंग इन द कंपनी इफ दे आर डूइंग। तो इस बॉक्स में क्या है, बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है, लो है, यहाँ लो लिखा है ना, यानी ये बिहेवियर एंड एटीट्यूड में भी ये लो है और नॉलेज एंड स्किल में भी ये लो है। ओके, तो ऐसा बंदे को कंपनी में क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे उसको। नोबडी विल कंसिडर। न उसका स्वभाव ठीक है, न काम करने का ढंग ठीक है, न काम करने की इच्छा जताता है, और उसको न आता भी है। He doesn't know the knowledge about that product or he doesn't have any skills. दोनों अगर लो रहेगा तो ये आदमी रिजेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इस बॉक्स में क्या है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज वेरी हाई। यह देखिए हाई है ना, ये यहाँ पे हाई लिखा हुआ, ये बॉक्स में ये वाला पैरामीटर बहुत ही बेहतरीन है, बट नॉलेज एंड स्किल के बारे में अगर देखेंगे तो वो कमजोर है। करेक्ट, नॉलेज एंड ये स्किल कमजोर है, बट बिहेवियर बहुत अच्छा है। ऐसा बंदे के बारे में जो सामने वाला है, मैनेजर हो या उसका साथीदार हो, क्या सोचता है, यार सिंपैथी दिखाता है, यार बेचारा बंदा ठीक है यार, काम थोड़ा कम कर लेता है, थोड़ा जानकारी नहीं है, बट बंदा बहुत अच्छा है। दैट इज व्हाट सिंपैथी दिखाते हैं। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू सी in this box, the behavior and attitude is very low, correct, ये तो लो में है, एंड उसका नॉलेज एंड स्किल जबरदस्त है, वेरी हाई। मतलब जो भी पूछो ऐसा वो काम देखो झटके में करता है, कोई सवाल जवाब है, नॉलेज है, डाटा है, ही इज वेरी फैंटास्टिक इन हिज परफॉर्मेंस, बट ही इज वेरी बैड एट हिज बिहेवियर। सच पर्सन इज called घमंडी, राइट, इगोइस्टिक। बट अगर आपका बिहेवियर भी बेहतरीन है और नॉलेज एंड स्किल दोनों अगर ये बेहतरीन है, देखो ये हाई है ये बॉक्स में यहाँ पे, एंड ये भी हाई है, नॉलेज एंड स्किल ये है, दिस बंदा इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, सलाम साहब। ओके, सो दिस इज हाउ दिस जोहारी विंडो टू मैप the personality it is used. Okay, on the other hand आपको यहाँ प्रोडक्ट के बारे में आपका एक कंपैरिजन कर सकते हो। See, there is a competition product and there is your own product. तो एक तरफ से आपने प्राइसिंग लगा दो, एक तरफ क्वालिटी लगा दो, तो एकदम लो क्वालिटी का सबसे लो प्राइस है और क्वालिटी भी बहुत लो है, तो लोग उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे, कभी भी नहीं ये करेंगे। ऑलराइट, बट ये मतलब प्राइस एंड क्वालिटी, क्वालिटी एकदम बेहतरीन है, एकदम क्वालिटी बेहतरीन है, बट ये प्राइस बहुत लो है, बट मुझे परवड़ेगा क्या? इफ आई वांट टू मैन्युफैक्चर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, but if I'm keeping a low price,
राइट, मुझे खर्चा ज्यादा होने वाला है, मैंने कीमत गलत लगाया है, मेरा प्राइसिंग भी सही होना चाहिए, क्वालिटी भी सही होना चाहिए, तो ये इस बॉक्स में जाएगा। सिर्फ मेरा प्राइसिंग एकदम मैंने हाई प्राइसिंग किया इधर, राइट, बट मेरा क्वालिटी अगर डाउन है वो कोई नहीं लेने वाला है उसको। इस बॉक्स में का इफ योर प्रोजेक्टेड प्राइस ऑन द बॉटम, क्वालिटी ऑन द वर्टिकल लाइन, सो दिस नोबडी विल परचेज, राइट, ये प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, ये भी कोई नहीं लेगा, ये तो इतना धूम धड़ाका बेचेगा आप नुकसान में जाओगे, ठीक है ना। बट ये सही रहेगा, क्वालिटी भी दे रहा हूं मैं, पैसा भी दे रहा हूं। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू जोहरी विंडो के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल टूल, जैसा कि इंप्रूविंग अवेयरनेस अबाउट म्यूचुअल, अगर पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे तो हम आपस में, ठीक है, एक्चुअली जोहरी विंडो में बॉस का काम क्या है, जो हमारे बॉस होते हैं, इफ आई गो बैक, he has to always explore not known things, इसके पास क्या खूबियां नहीं है, राइट, जो मुझे भी पता नहीं है उसको भी पता नहीं है, उसके ऊपर बॉसेस काम करना चाहिए। ओके, बट जो चीजें उसको पता नहीं है और दूसरा दुनिया को पता है, बॉस नोज कि ही इज अ गुड सिंगर, देन उसको एनलाइटमेंट करके, उसको सपोर्ट करके उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए। So that is what Johari window talks about. Actually, this is called a 9-window Johari window, the best for business model. For any business analysis, normally people use 9-window Johari window. See, we cannot cover all the examples in today's this thing because it is a basics introductory session है, but आपका जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है कि जैसा हमें कोई भी पैरामीटर लेना है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी लेना है वर्सेस रिजेक्शन, यानी आई हैव गॉट अ मैन पावर, एक बंदा दिन में 100 प्रोडक्ट निकालता है, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स वो एक दिन में दे रहा है, तो महीने में कितने हो गए, इफ देयर इज 25 वर्किंग डेज, 2500 ही इज डूइंग जॉब्स इन अ मंथ, बट रिजेक्शंस कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, करेक्ट। और दूसरा बंदा है वो प्रोडक्शंस वो 10 कम करता है बट रिजेक्शंस कम हो रहे हैं। ऐसे देयर, बिकॉज यू हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय, हर एक का परफॉर्मेंस अलग अलग है, तो इन दैट केस मुझे कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय है वो अगर मुझे ढूंढना है, तो ये 9 विंडो जोहरी विंडो इज द बेस्ट। देन यू हैव टू अराइव एट सम पैरामीटर्स, राइट, लाइक लो मतलब कितना, से out of 100 vehicles in a day, if somebody is doing less than 50, that is very low, if somebody is doing 90 and above, that is high, and in between जो है वो medium है, rather 60 आप ले सकते हैं, 60 और 70 के नीचे तो लो में रखेंगे, एंड 90 एंड अबो है तो हाई में रखेंगे, देन बीच वाला जो है मीडियम कंसिडर करेंगे, दैट इज व्हाट अ प्रोडक्टिविटी हो गया। सिमिलरली रिजेक्शन, 100 में से मेरा उम्मीद क्या है, नॉट लेस देन 1, मतलब नॉट मोर देन 1% रिजेक्ट होना चाहिए। इफ somebody is doing 5% rejection, somebody is doing 3% rejection, then somebody is doing 10% rejection, again I have to have a bracket of, right, 1% and below है तो लो रहेगा, 2 to 3% है तो मीडियम रहेगा, देन मोर देन 3% है तो हाई रहेगा। देन विद दिस प्लेसमेंट एक्स आदमी का प्रोडक्शन कितना है, रिजेक्शन कितना है, आपको लिस्टिंग है, वाई बंदे का प्रोडक्शन कितना है, रिजेक्शन कितना है, यू हैव टू लिस्ट डाउन करके उसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करके कौन कौन सा बॉक्स में फिट होता है आपको यहाँ प्लेसमेंट करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड यार हु इज द बेस्ट, राइट, ऑलवेज दिस पर्सन विल बी बेस्ट, राइट, जिसका सॉरी दिस पर्सन विल बी द बेस्ट, करेक्ट, बिकॉज इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और रिजेक्शन एकदम कम है, लो है ना, ही इज गोइंग टू बी नंबर 1। इसमें 2-3 लोग जो बैठते हैं एज पर द क्राइटेरिया, हमने कितना वॉल्यूम को 90 to 100 वॉल्यूम को हमने
हाई लिखा है और लेस देन 1% वाले को हमने लो लिखा है रिजेक्शन में। इसमें जितने लोग आते हैं वो नंबर 1 बनते हैं एंड ये सबसे वर्स्ट बंदे बनते हैं। लाइक दिस यू हैव टू यूज दिस जोहरी विंडो। इवन प्रोडक्ट पोजिशनिंग में भी ये बहुत काम में आता है। इफ आई हैव मैन्युफैक्चर्ड अ न्यू बाइक, राइट, नया ब्रांड व्हीकल आ गया, अभी इसको मार्केटिंग में पोजीशन करना है। इफ आई वांट टू पोजीशन द बाइक, आई हैव टू टेक some parameters। मेरा अगेन जैसा आई सेड, प्राइस है, परफॉर्मेंस है दिस साइड, राइट, प्राइस है, यूटिलिटी है, या परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी है। देन मार्केट में इस आई हैव टू अगेन प्राइसिंग में 70,000 to 1 लाख रुपीज का एक प्रोडक्ट रहेगा, 1 लाख से 1.25 लाख का दूसरा प्रोडक्ट रहेगा, 1.25 लाख से 1.5 लाख तक हाई वाला तीसरा प्रोडक्ट रहेगा ऑन द प्राइस फ्रंट। देन परफॉर्मेंस में या कैपेसिटी है, 100 सीसी है, 125 सीसी है, 150 सीसी है। तो आई हैव पुट इनटू 3 कैटेगरीज। लो मीन्स 100 सीसी, मीडियम मीन्स 125 सीसी, हाई मीन्स 150 सीसी। देन इस प्राइस में इस सीसी कौन सा गाड़ियां यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस प्रकार मैं सभी का मैपिंग करूं तो मेरा अभी जो नया मॉडल आने वाला है वो कहाँ फिट हो रहा है। आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस। Okay, to get into that, it is a very lengthy procedure. That's why I'm only giving this thing basic knowledge on this. Okay, that is what Johari window. Next, it is a Gantt chart. Gantt chart is a simple planning tool. I can quickly just go through. It is a project planning tool. बहुत ही बेहतरीन टूल है। अगर आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट करना है तो you have got hundreds of activities into that, right? For that, you have to use the Gantt chart. रिप्रेजेंट्स टारगेट टाइमिंग एंड टास्क एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या काम करना है और उसका टारगेट डेट क्या है वो इंडिकेट होता है। इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड मोस्ट हेल्पफुल। ओके, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसको हैंडल करने में बहुत ही बेहतरीन होता है। सो दिस इज व्हाट अ फॉर्मेट। मान लीजिए सीरियल नंबर है, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 हम लिस्टेड करेंगे, जिम्मेदारी किसका है वो भी हम डाल देंगे। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तो डेट्स रहेंगे। अगर 1 महीने में काम करना है तो 1 to 30 आप डेट डाल सकते हो। 2-3 महीने में, 6 महीने में काम करना है तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 आप ले सकते हो टाइटल में। वट एवर यू वॉन्ट यू फील, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्पैन ऑफ दैट कंप्लीशन, राइट। सो देन दिस इज अ actual whatever first week of Jan, second week of Jan, third week of Jan, fourth week of Jan, then first week of Feb, second week of Feb, ऐसा रहेगा। या 1 मंथ में कंप्लीट करना है तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ऐसा रहेगा। अभी मिस्टर प्रकाश विल डू दिस एक्टिविटी नंबर 1, ओके, एट व्हाट डेट ही हैज टू कंप्लीट। आपको इधर कलर भरना है, इसको ये पूरा कलर भरने का है। ओके, दिस इज योर प्लान। तो ये 2 तारीख को होना, ये मैनेजर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम है। यू हैव टू टेक ऑल एंटायर टीम, सिट टुगेदर, चार्ट आउट ऑल द एक्टिविटीज। ये एक्सेल शीट में पूरा एक्टिविटीज लिख दो। इस साइड में जो एक्टिविटी दिए हुआ है, जिम्मेदारी किसको देना है वो उनका सामने नाम लिख दो। देन प्लान डेट, यहाँ पे कब तक कंप्लीट करोगे, कब तक कंप्लीट करोगे। देन सभी का ये कंप्लीशन होने के बाद एज अ बॉस यू नीड टू ओनली मॉनिटर कि इस डेट को होना चाहिए था, हुआ कि नहीं है। यू हैव टू टेक अ रिव्यू। अगर हो गया तो यहाँ पे टिक मार्क होना चाहिए। एक्चुअल डेट है, करेक्ट, दिस इज एक्चुअल टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क। दिस इज अ सिंपल Gantt chart. There are types of Gantt chart. This is called sequential. Sequential मतलब you got 5 activities here and these are the agencies or responsible persons to do. Then planning date. एक्चुअली इसका ऐसा है कि पहला काम होने के बाद ही दूसरा काम होने वाला है, राइट। दूसरा काम होने के बाद ही उसके ऊपर तीसरा काम हो सकता है। लाइक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही जो मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोसेस में, तो आप अलग अलग पैरेलल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन दैट केस ये सीक्वेंशियल Gantt chart बनता है। पहला एक्टिविटी 1 तारीख को हो गया, दूसरा एक्टिविटी में भी 2 डेज लेता है बोल के हमने यहाँ पे 2nd and 3rd डेट लगाया। तीसरा एक्टिविटी टेकिंग 3 डेज। सो यहाँ पे उसका बाद ही 6 तारीख को आ रहा है मिस्टर एक्टिविटी 3 मिस्टर BCD जो कर रहा है। सिमिलरली एक्टिविटी 4 इज टेकिंग 2 डेज।
then finally the last activity is taking 1 day. So your work starts on first date and ends at 9th date. If it is a 6-8 month program, it starts in first week and it has to complete on 9th week. This is how you have to monitor this Gantt chart. This is called sequential. The other one is parallel. देखो somebody is doing this, somebody is doing this. Okay, इसका बाद में इसका काम 2 दिन के लिए चल रहा है, but तीसरा बंदा यहाँ पे 5 दिन के लिए दूसरा काम कर सकता है. Okay, तो और तीसरा बंदा एक्चुअली 2 तारीख से ही 3 दिन अपना काम कर सकता है. इस प्रकार एक्टिविटी 5th is ending here. So this is called overlapping kind of Gantt chart. Okay. So it's very simple and effective tool for planning activities, quick reading of project progress, easy to review the status with your employees, subordinates, very easy to revise targets. ठीक है, एक आधी चीज हुआ नहीं टाइम को इमीडिएटली आप करेक्शन कर सकते हैं. ये हमेशा अपना टेबल पे होना चाहिए या सामने होना चाहिए Gantt chart, so that you will continuously monitor and improve upon the things if something is lagging on. Okay, this is a Gantt chart. And finally the last one, most important, time management. Time हमें मिलता ही नहीं है. Okay, honestly अगर हम बात करें तो हमें इतने एक्टिविटीज करने पड़ते हैं दिन में. हम नॉर्मली कितना घंटा सोते हैं? कैन एनीबडी टेल? प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स. 8 hours. Okay, anybody else? 6 to 7 hours. Somebody is saying 7 hours. Sucheta ma'am telling 6 to 7 hours. Sukraman 8 hours. Anybody else? Quick. और कोई टाइप करे प्लीज. Okay, again 7 hours. 8, 6, 7, 7 hours. And by and large, people are sleeping for 7 hours in a every day. Okay. Next activity क्या है? Morning course. Morning course क्या होते हैं? हमें उठना है, राइट, ब्रश करना है, हाँ, शेविंग करना है, वी हैव टू गेट ग्रूम, टेक अ बाथ. कितना टाइम जाता है इन सभी में? फिजिकल फिटनेस अलग है यहाँ पे. ओके, द फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज separately time given for that. Please tell me how much time we need. Quickly, some 3-4 people can type. 60 hours. Sorry, 1 hour. Okay, 1 hour. Next, 30 to 45 minutes. Okay, 1 hour. Okay, चलो, हमारा मतलब सुबह मुंह धोना, ब्रश करना और जो भी हमें एक्टिविटी करने हैं उनके लिए हमें टाइम 1 घंटे का लगेगा. एवरेज आई एम टेकिंग एज अ 1 hour. ओके, नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस कितना लोग करते हैं वैसे ऑनेस्टली? somebody is telling 1 hour. Physical 1 hour. I am putting 1 hour. Okay, but I know maximum people are not doing. Okay, ये अपना अपना चार्ट बनाना है सभी को. ठीक है. Somebody is telling 30 minutes, somebody is doing 1 hour. Is very good, right? Whatever you are doing. Next, working hours. यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है. Though officially we are supposed to work 8 hours, I don't know how much you are keeping, right? Please mention 10 to 11 hours. Great. Anybody else? Somebody 13 hours. Okay. Yes, anybody else? 14 to 16 hours. Okay. If I average out all these things, okay. अगर अभी इस ग्रुप में there are more than around 20-25 people थे अभी, right? तो अगर इनका मैं एवरेज निकालो तो आई एम डैम श्योर आपको 10 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेगा. ठीक है. स्लीपिंग आई एम टेकिंग, सॉरी, वर्किंग 10 घंटा आई एम टेकिंग. कम्यूटिंग, ऑफिस आना जाना है, ऑफकोर्स बॉम्बे में 4 घंटा जाता है आने जाने के लिए, राइट. कई जगह पे 10 मिनट में जाते हैं और 10 मिनट में आते हैं.
if I take average, okay, for the group, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच के लिए कितना जाता है? खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 आवर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऑल टुगेदर, राइट, ऑल पुट टुगेदर यू विल नॉट एक्सीड मोर देन, आदमी खाने के लिए 20 मिनट, कोई भी कंपनी में आधा घंटे का मैक्सिमम रहता है, राइट, लंच ब्रेक जो होता है, ठीक है, तो वो भी मतलब टी ब्रेकफास्ट के साथ सब कुछ होता है। तो हम खाना, ब्रेकफास्ट और लंच डिनर 1 घंटे में कर सकते हैं। तो क्या हम आधा घंटा अपना हॉबीज करते हैं, 30 मिनट्स, हम क्वालिटेटिव टाइम कितना, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, कितने लोग अपने लिए टाइम देते हैं। इनफैक्ट फिजिकल फिटनेस भी क्वेश्चन मार्क है, फिजिकल फिशन, दिस इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। बट एनीवे, अभी टोटल कितना हुआ है? 19, 20, 21, 21.5। अगर ए भी मैं पकड़ता हूं, ठीक है, मैं ये निकाल देता हूं 30 को, टाइम विद क्वालिटी पीपल, हार्डली पीपल आर गिविंग क्वालिटी टाइम। जो साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, दैट इज नॉट अ क्वालिटी टाइम, ओके, वो हॉबीज में आ गया उधर। एंटरटेनमेंट एंड हॉबी में हम ऑलरेडी 1 घंटा दिया हुआ है। तो टाइम विद फैमिली, अगेन इफ आई से 1 आवर, देखिए 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, यानी ये सारे चीजें करके भी हमें अभी 1 घंटा बच रहा है, जिसमें से हम 4 घंटे का काम करते ही नहीं है, करेक्ट ना? सो व्हाट वी हैव गॉट अ नोशन ऑफ वी डोंट हैव टाइम इज रॉन्ग, करेक्ट? आई एम डैम श्योर many people they don't do this, ठीक है, very few people they do this. This is also not happening much, but it is happening more than expected. You are not supposed to give more than 1 hour for your hobbies. Of course, if your hobby is your work, it is job, that is different. Sachin Tendulkar will play for 16 hours, he will be on the ground for 16 hours, that is different. That is his hobby as well as his work, correct? तो टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम हार्डली पीपल स्पेंड। तो आपका टाइम इधर भी बच रहा है, इधर भी बच रहा है, इधर भी बच रहा है, बट ये सारा करने के बावजूद भी एक घंटा बच रहा है। दिस इज नॉट गोइंग मोर देन 23 आवर्स आफ्टर गिविंग टाइम टू ऑल दीज एक्टिविटीज, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइम मैनेजमेंट एट ऑल। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, करेक्ट? So how time is wasted? 36% of, right, our time is wasted in this activity. Okay, it is studied matter. We love to talk about others. Okay, ये हमारा इंडियन मेंटालिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, उसमें से एक उठ गया तो उसी के बारे में शुरू हो जाता है। That is the biggest problem. So you have to control on this. 36% time means it's not a joke. Doing things for others, शाबाशी लेना है, अच्छापन लेना है, हाँ, बंदा बहुत अच्छा है यार, सब कुछ काम करता है। Doing things for others, अपना काम छोड़ना है, दूसरों का काम करना है, तो उसमें भी हमारा टाइम ज्यादा जाता है। Of course, lack of decision making, हम निर्णय लेते ही नहीं है, ये करना, ये करना, ये करना, निर्णय जल्दी नहीं लेगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? प्रोक्रेस्टिनेटिंग मींस आगे ढकलने का, कल करते हैं, बाद में करते हैं, कल करते हैं, बाद में करते हैं। तो दीज आर द रीजंस। ऐसे बहुत सारे अपने खुद के रीजंस हो सकते हैं, हमें खुद को झांकना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन आवर ओन, ओके? तो इसलिए ये एक्टिविटीज आई विल जस्ट गो क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Time management is again put into 4 quadrants. There are certain things which are urgent and important. यानी कुछ चीजें ऐसे होते हैं
बहुत ही अर्जेंट रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको हमें सब कुछ छोड़ के करना पड़ता है। दैट इज व्हाट crisis management, project meetings, right? They are very very important and urgent also. There are certain things they are not urgent but बहुत important रहते हैं, correct? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बट अर्जेंट बहुत रहते हैं, जैसे प्रिपरेशन है, राइट, क्लैरिफिकेशन है, प्लानिंग है। प्लानिंग अर्जेंट नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू डू वेरी गुड प्लानिंग you will be able to complete the work faster. रिलेशनशिप बिल्डिंग, दूसरों के साथ हमें संबंध जोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ओके। एंड देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। एकदम मतलब आग लगाओ रहता है बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है। यू आर इनटू अ जॉब, देयर इज अ फोन कॉल, आप अच्छे खासा काम कर रहे हो बट फोन कॉल आ गया, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन, बट अर्जेंट तो है ही है। वो अभी उठाना चाहिए क्या? हम 5 मिनट के बाद भी उठा सकते हो, देख के बाद में कॉल कर सकते हैं। बट देर आर सर्टन पीपल, दे आर सिटिंग इन द मीटिंग एंड दे अटेंड फालतू फोन कॉल्स एक्चुअली। इफ इट इज फॉलिंग अंडर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट फोन कॉल, दैट इज डिफरेंट, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, ओके। बट कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें रहते हैं नॉट अर्जेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जहां पे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अननेसेसरी फोन कॉल, गॉसिपिंग, वॉचिंग टीवी, राइट, एक्सेसिव हर चीज, फेसबुक, राइट, व्हाट्सएप, these are the things, they are not urgent also, not important also, okay. So we have to manage this quadrant importantly. That is what time management. The how to manage time is doing the right things and doing things right, okay. सही काम करना और सही ढंग से करना, that is what it is telling. Doing right things, आपको हमेशा सही काम ही करना है और वो काम सही ढंग से करना है, then only आपका आउटपुट बढ़ता है। लाइफ इन कंट्रोल, ओके, नॉट ड्रिवन बाय सर्कमस्टेंसेस। हम दूसरों के अधीन में नहीं रहना चाहिए। Our time, our actions, our activities must be under our control. We should not be influenced by circumstances. If circumstances drives us, we don't do our own job. अगर आजू बाजू वातावरण हमें ड्राइव कर रहा है तो हम अपना काम करेंगे नहीं है, ओके। तो आप योर एवरीडे लाइफ, एवरीडे जर्नी ऑफ लाइफ हैज टू बी नॉट दैट परफेक्ट, ओके। परफेक्शन कभी भी नहीं होता है। Even if you achieve 60 to 70% perfection, you should start working on that, going ahead step, right? That is very very important. Have a right balance of wheel of life, मतलब बैलेंसिंग जरूरी है। तो इसीलिए हमारे पास डेली सुबह उठने के बाद क्या करना है उसका लिस्ट होना चाहिए, ओके। एंड वो लिस्ट के हिसाब से प्रायोरिटाइज, यानी जो 5 मिनट में होने वाला काम था उसको हम बॉटम में लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, इमीडिएटली करके खत्म करना चाहिए, प्रायोरिटाइज, ओके। देन यू हैव टू, जो दिक्कतें आते हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। जो बीच में, दोनों का मतलब एक ही है, हैंडलिंग इंटरप्शन एंड ऑब्स्टेकल्स, मैनेज क्राइसिस। बीच में एकदम जो आग लगने वाली चीज आते हैं उसको कूल माइंड से हैंडल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो गांधी जी बोले ना, कल करे सो आज करो, आज करे सो अभी करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा आदत है, हम चीजें आगे ढकलते जाते हैं, ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू ऑलवेज प्लान योर वर्क, प्लान द वर्क एंड वर्कआउट द प्लान। आप अपना काम का प्लानिंग कर लीजिए और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो आप फेल होने में प्लानिंग कर रहे हो। सी, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे होंगे तो आप फेल होने के लिए ही प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब है। सो somebody said, most busiest person has got time for everything,
जो बंदा अपने आप को फुल डे बिजी रखता है उसको हर चीज के लिए समय मिलता है, इसका मतलब ऐसा है। ओके, so this is all about today's session on part 1. I hope I have delivered up to your expectation. Thank you so much for your patient listening. Sir, over to you, Navnath ji. हेलो। Sir, you are on mute. यस यस, थैंक यू सीपीके सर, इट्स अ वंडरफुल सेशन। हम लोग इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स के लिए जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के कमिटमेंट के हिसाब से ही चलता है, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही चलता है। ये प्लेटफॉर्म जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि हम लोग बिजनेस ओनर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, हम लोग एक साथ जुड़ के काम करते हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने नेक्स्ट 24 दिसंबर के लिए एक स्टडी टूर अरेंज किया है, स्पेसिफिकली फॉर द पुणे पीपल्स। ये जो स्टडी टूर है, ये फोर्ट के ऊपर हम लोग जाने वाला है, और जो महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे वर्ल्ड के जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर वहां पे कुछ सेशंस होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी पुणे बेस्ड पीपल्स हैं, कि आप अपने अपने बच्चे हैं उनको इस टूर के ऊपर भेजिए। वहां पे जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है कि हम लोग क्यों आइडियोलॉजिस्ट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्यों उनको फॉलो करना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके लाइफ में क्या क्या किया, ये सारी चीजें उस बच्चों को वहां पे सीखने को मिलने वाली है। इसके साथ में माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो उद्योजक है, जो बिजनेस ओनर्स है, अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अगर आपको आपके बिजनेस में एस्टेब्लिशमेंट करना है, अगर आपको आपके बिजनेस में कुछ करेक्शंस करना है, तो फिप के साथ जुड़िए, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के साथ में। यहाँ पे अलग अलग बिजनेस ओनर्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। डेफिनेटली फिप का कोर ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इंडिया के जितने भी बिजनेस ओनर्स है, वो सारे बिजनेस ओनर को एक ऐसा इकोसिस्टम मिले, जो इकोसिस्टम्स बिजनेस ओनर को उनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए सपोर्ट करे। चाहे वो डायरेक्टली बिजनेस में हो, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सब्सिडीज में हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप फिप के साथ जुड़े रहिए। फिप के साथ जुड़ने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि बिजनेस स्पॉट है, बिजनेस नेटवर्क्स है। बिजनेस स्पॉट को जुड़े रहने के लिए सामने आपको लिंक दिखाई देती है, QR कोड है। बिजनेस नेटवर्क को जुड़ने के लिए सामने लिंक है, QR कोड है, वहां से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या हमारे साथ कांटेक्ट करके, हमारे साथ बात करके आप फिप के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे बिजनेस नेटवर्क, बिजनेस स्पॉट के अलावा बिजनेस वुमन है, वुमन प्रेनर्स के नाम से ये प्लेटफॉर्म जाना जाता है। बिजनेस यूथ है, यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए या यूथ के लिए डेवलपमेंट के लिए फिप काम करता है। इसके साथ में बिजनेस डिजिटल है, बिजनेस कट्टा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे वीकली बेसिस पे एजुकेशन सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, लर्निंग सेशंस होते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो एक्सपर्ट्स अपना अपना तजुर्बा, अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ से कुछ चीजें सीख सकते हैं, और माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आके आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, वो अदर पीपल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका एक्सपर्टीज किसी की बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हेल्प हो सकता है। आपकी एक्सपर्टीज से उसी बिजनेस ओनर को एस्टेब्लिश करके हम लोग इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है तो हमारे साथ आप जुड़िए। सामने जो लिंक दिखाई दे रही है स्पीकर रजिस्ट्रेशन की, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन करिए। और जैसे कि आज सीबी कातराबा सर ने हम सब लोगों को गाइड किया है, उसी तरह से आप भी ये प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को
हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ देके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो माइंड में, कोई भी सवाल हो, तो वो सवाल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आपका सवाल डाल के पूछ सकते हैं। सो वेलकम टू योर क्वेश्चंस। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस। ये सपना जी आप है, हिरेन जी आप है, हेमा जी आप है, सुकुमारन जी आप है, रेड्डी साहब आप है, डॉक्टर कुमार अभिषेक जी है, अब्दुल शेख है, वादी जी है, शंतनु रास्ते सर है। यस हेमा जी। हाँ हाँ सर, मुझे ये पूछना था। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो बहुत अच्छा लगा सर ने जो बताया सब। तो मुझे ये पूछना है, स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए? मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, लेकिन स्टार्ट कैसे करे, कैसे क्या करे, वो उसका पता नहीं। तो उसका कुछ सेशन आपका रहता है क्या? डेफिनेटली कमिंग टाइम में हम लोग स्टार्टअप के लिए भी सेशंस लेने वाले हैं। ऑलरेडी स्टार्टअप के स्पीकर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। डेफिनेटली कमिंग मंथ्स में उसके ऊपर सेशन होगा। और सीबीके सर, मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि मैडम के लिए आप 2-4 चीजें इनपुट्स दे दीजिए यहीं पे। उन्होंने, उनका सवाल आया है तो इनपुट्स तो देना चाहिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। सीबीके सर, सीबीके सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम फॉर योर क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड काफी लोगों के लिए ये क्वेश्चन शायद वैलिड रहेगा। तो कोई भी बिजनेस करना है तो हमें कुछ प्रोसेस करने होते हैं, एंड उसके लिए एक्सपर्टाइज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी का नाम अप्रूवल लेना है, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। फिर देयर शॉप एक्ट रहता है, देन सर्टन लेबर रिलेटेड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना होता है, एंड देयर इज एंटायर प्रोसेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज है। सो देयर आर पीपल फॉर दैट। अगर मैं आज के सेशन के रिलेटेड के हिसाब से कुछ इनपुट देना चाहता हूं तो मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आपको शॉर्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू दैट। ताकि, और दूसरी बात, और एक चीज होता है कि हमारा खुद का पैशन क्या है, मैं किस चीज में, देखिए मैं जो करना चाहता हूँ वो लोकल मार्केट में लेने के लिए बैठे हैं क्या? ठीक है, अगर लेने के लिए बैठे हैं तो पैसा देने के लिए बैठे हैं क्या? करेक्ट। अगर लेने वाला भी है, पैसा देने वाला भी है, और मैं बनाने वाला हूं, तो बट ये मैं क्वालिटी और कंपटीशन को बीट कर सकता हूं क्या? तो ये चीजों का सभी ध्यान में रख के आप अपना स्वाट कर लीजिए। एंड डेफिनेटली क्या क्या करना चाहिए बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, तो जैसा अभी नवनाथ सर ने बोला है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। वो आगे हम उसका सेशन जरूर करेंगे। तो बेसिकली चीज यही होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो कंपनी सेक्रेटरी, जैसा सीए होता है वैसा कंपनी सेक्रेटरी का रोल करने वाले प्रोफेशनल्स है मार्केट में, वो आपके लिए काम करेंगे। फिर अकाउंटेंसी के लिए आपका अकाउंट मेंटेन करने के सीए होते हैं। प्लस आपका जो थॉट प्रोसेस है, क्या आप एक एम लेके चल रहे हैं जिंदगी में, कौन सा बिजनेस करने का सोच रहे हैं, उसके बारे में ब्रांडिंग एलिमेंट्स तैयार करना है, उसका लोगोस कर बनाना होता है, उसके एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, राइट। देन यू हैव टू गेट इनटू मार्केटिंग। तो वी हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वी हैव बीन डूइंग ऑलरेडी। आपने कुछ टॉपिक्स मिस किए हुए हैं क्योंकि आप पहली बार आप ज्वाइन हो चुके हैं इस हाँ प्रोग्राम को। सर। तो आप अभी समझ चुके हैं कि ये एफआईपी क्या चीज है, एंड फॉर whom it is working. तो you can connect with Federation of Indian Industries and Professionals through whichever platform you want, बिजनेस पॉट है, बिजनेस नेटवर्क है, ताकि आपको ये समय समय पे ये आपको इंटीमेशंस आते रहेंगे। और रेगुलर कोर्सेस हम जो हर वीक लेते हैं वो हम आपको इंटीमेट भी करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सीबीके सर, सर। थैंक यू, थैंक इसमें यू मैं सर। चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा हेमा मैम, आपका जो सवाल है उसके ऊपर।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने कोई बिजनेस चालू नहीं किया है और आपको बिजनेस चालू करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो बिजनेस चालू करना है उसकी आइडिया। अगर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है तो आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। और आइडिया के साथ साथ में आप जो बिजनेस चालू करने वाले हैं, वो बिजनेस को आपको कहाँ तक लेके जाना है, वो विजन भी आपके पास होना जरूरी है। दूसरी बात, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस आपको क्यों करना है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस अगर सोसाइटी ओरिएंटेड नहीं है, लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं है, तो वो बिजनेस मार्केट में चलता कभी भी नहीं। मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज करेक्शन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज लोगों की हेल्प, जहां पे लोगों की हेल्प होती है, वही चीज लोग एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जो चीज मुझे पसंद है और जो चीज लोगों को पसंद नहीं है, अगर वो मैं मार्केट में लेके जाता हूँ, तो वो चीज मेरे पास ही रहने वाली है, वो लोगों के पास कभी जाने वाली नहीं। सो ये हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए। अगर लोग खुश हैं तो हमारा बिजनेस चलने वाला है, अगर लोग नाराज हो गए तो हमारा बिजनेस कभी नहीं चलेगा। दूसरी बात कि आपके बिजनेस में पीपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पीपल को हैंडल करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, किस तरह से पीपल मैनेजमेंट करते हैं, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर आप कंसिडर करते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये छोटे छोटे पैरामीटर्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका बिजनेस जैसा आपको चाहिए उस तरह से आप अचीव कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपको कुछ क्वेरीज है, पर्सनली कोई बात करना है, तो मेरा नंबर सामने है, सीवी कातरावा सर का नंबर सामने है। आप कभी भी हम लोगों को फोन लगा सकती है, डायरेक्टली जूम के ऊपर 1-to-1 में बात कर सकती है। वी आर हियर फॉर द हेल्पिंग द पीपल्स, वी आर द हियर फॉर द हेल्पिंग द बिजनेस ओनर्स। सो आगे जाके आपके पास माइंड में कभी भी बिजनेस के बारे में कोई भी सवाल आता है, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू हेमा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में। व्हाट बिजनेस इज गुड फॉर इन्वेस्ट 6 CR? रेड्डी साहब, रेड्डी साहब का सवाल है, आ रहा रेड्डी साहब। सीबीके सर आप कुछ इनपुट्स दे दीजिए, उसके बाद में मैं क्या सवाल है सर? व्हाट बिजनेस इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट 5 to 6 years? 5 to 6 years. 6 CR करोड़। ओके ओके 6 रेड्डी साहब के पास 5 से 6 CR का अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, ऐसा सवाल सर का है, प्लीज। ओके, सो आई थिंक अभी आपका जो ब्रैकेट है उसके हिसाब से बताना, मतलब स्पेसिफिक बताना काफी ये रहेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी एवेन्यूज फॉर दैट। जैसे कि मैंने बोला 6 करोड़ का बिजनेस के लिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन, जैसे एक ऑटोमोबाइल का डीलरशिप होता है, उसमें आज का जमाने में 3 to 4 CR लग जाता है। ओके, या 4 to 5, it all depends upon the cities. If it is metro, even 6 crore may be less for that. Okay, and यही अच्छा जो टायर 2 टाउन्स है, टायर 1 टाउन्स के लिए भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में रहेगा, अच्छा स्कोप रहेगा। आप एक बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलते हैं, उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि अमाउंट जो है 6 करोड़ मीन्स दीज आर द एवेन्यूज। बट उससे लेस करना है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना हो, तो भी अगर आपको एकदम हाईटेक लेवल पे एग्रीकल्चर करना हो, तो भी वहां पे ये अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड लाइक इजराइल टेक्नोलॉजी। आप अपना आपका जो 4-5 एकड़ का भी जमीन रहेगा, वहां पे आप इतना इनकम निकाल सकते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। So I think this is from my side. नवनाथ जी, आप और बेहतरीन आइडिया दे सकते हैं इसमें, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट। आरा रेड्डी साहब, क्या आप अनम्यूट करके आप क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? रेड्डी साहब, अभी आप क्या कर रहे हैं?
अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, देन बात कीजिए। आई थिंक रेड्डी साहब, आर यू देयर? आई थिंक वी कैन टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने थैंक यू बोला है। ओके रेड्डी साहब, मैं आपको कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपके पास शायद अनम्यूट करने के लिए कुछ चैलेंजेस है, तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपके पास पैसा जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको लोगों को क्या सर्विस देना है। जैसे कि मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर दिया था प्रैक्टिकली, कि आपको ऐसा सर्विस या ऐसा गुड्स आइडेंटिफाई करना है जो लोगों के काम में आए, जो लोगों के लाइफस्टाइल को सुधारे, जो लोगों के प्रॉब्लम्स को दूर करे। ऐसी कोई भी गुड्स या सर्विस आप ढूंढो, उसके ऊपर काम करो, डेफिनेटली आपको आपका बिजनेस काफी आगे लेके जाएगा। बहुत बार लोगों का सवाल आता है कि मेरे पास XYZ अमाउंट है और मुझे उसको विद इन 2 years, विद इन 1 year डबल करना है, मुझे ट्रिपल करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें हार्ड वर्क जरूरी है, उसमें मैनेजमेंट जरूरी है, उसमें पीपल मैनेजमेंट है, उसमें मनी मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें आते हैं। हम लोगों को ये पैरामीटर के ऊपर काम करना पड़ता है, तब हम लोग एक गुड रेपुटेशन हमारा बना सकते हैं और उसके साथ साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। यस सुचिता मैम, आपने हैंड रेज किया, प्लीज। Yes, sir. Actually, today itself, I came across a person who approached me for agricultural related some startup. But I really do not have any idea about it. He's from Hyderabad. What I'll do is I'll pass on his number to you, so you please take care of that. But he is in Hyderabad, so can you actually guide him? Yes, definitely, we'll help you. Yeah, हम लोग sir. उनको भी हेल्प करेंगे। अगर आपको भी लगता है कुछ इनपुट चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, वी हैव द एक्सपर्ट्स, नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प हिम। एंड उसके साथ साथ में अगर कोई बात करना चाहता है उस सेक्टर में तो डेफिनेटली वहाँ पे भी बात कर सकता है। हाँ सर, पर्सनली मुझे एग्री सेक्टर में मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, सो आई विल जस्ट पास ऑन दिस पर्सन टू यू। सर, सेकंड क्वेश्चन इज फॉर Katrabad sir. We are into furnishings. Actually, you might be knowing that we are into bed sheets and comforters and all, and we are starting in domestic market with distributorship. Now you are expert in distributorship, so I have done a market research for a year actually. And in Indian market, the sole distributorship, I mean, for entire geographical area, the margins go up to 5 to 7%. 7% is the maximum. And we are offering 12 to 14% to the sole distributors. Okay. So, and we are actually achieving it through our operational excellence and through, maximizing through our team and all these things. So we are good on those numbers. We are very happy about how we are doing it. And that's how we are offering that much of, margins to the distributor. The question is actually, is that a good strategy, and offering 50% to the retailers, whereas the market returns are margins for the retailers, the competitors margins for the retailers are around 30 to maximum 35%. So we are actually offering good margins to the retailers also. Do you think this is a good strategy we are actually taking in the market to push our products, because we are entering into the market? We have been into exports till now.
So in the domestic market, do you think it is a good strategy? Our threats are, infinite. We have very good brands in the market and they're dominating, and we have to push the product into the market. Okay. So All right, thank you, ma'am, for a very nice question. It is a complex as well as easy, both side. Okay, it is complex for market and easy for you because you're already happy with this. yeah. Okay, so the performance, though the distributor has been paid a higher margin, retailers are getting what they should get adequately, and you are still happy. Definitely, it is working for you. That is a good news. But as far as distributor is concerned, it is really a higher margin. Of course, it all depends upon the business size. Yeah. Okay. So the ticket size at the lower level, bottom level, and the earnings to the distributor. If you compare who are all giving, for example, for automobile parts distributors, the hardly margin is they are playing around 3% like that. Okay, you might be aware, you might have studied that. Yeah, yeah, So compared to that, yours is, I think, almost double or more than double. yeah. So, but still, if it is not affecting, you should be happy, and it is a good strategy, I can say. And even because in the it's already long put term, in sir, place. in that long term also. Long term, what you should do, you further need to understand the models of other businesses. Businesses. Okay. Versus the inflow. How Right. much? Yeah, you had compare the Hmm. inflow of your distributors versus the others distributors, the inflow. What is their turnover wise and Hmm. what they are getting end of the day. Hmm. If that is still matching and with their lower margin, Hmm. definitely we are paying unnecessarily high. Okay. Acha, unnecessarily high, is it okay? So Correct, even because- if we are doing that, even if we are doing unnecessarily high margins, do you think in long term we can be beating the best of the market players? I mean, can we replace the best of the market players? Be beating the Ma'am, it is not like that. If I am paying a high margin, so my sale will increase. Hmm. I don't think so. It is not proportion to exactly proportionally applicable. Mhm. Ultimately, your product quality and Yeah. the durability in your particular product, because it is in furnishing this thing, Hmm. that matters. And the marketing, what you do, if you want to really grow, you need to do a lot of marketing. Yeah. So on the other side, though you might be getting a good profit out of it, but to increase the volume, you need to spend more than. Yeah. Yes. Okay. Then Yes. what you should apply the strategy with the same margin. Okay. Anyway, Hmm. you will always keep hammering them. You are the highest paying this thing parent company. That it has to be in their brain. Yeah. Then you can increase your targets. Correct. Yeah. You can increase the targets. Yeah, If they start demanding more, because definitely the moment you increase targets, they start asking more margin. Yeah. Okay. If that is the case, then there should be a bracket. This is your minimum target, and you will get whatever you are getting. Over and above, if you do that, then you will increase. Otherwise, we won't increase. Okay, got it. Yeah, you can start with immediate effect. You can increase slowly the target. So that with the same margin, your volume will increase at least. Yeah. Your bucket will get a higher, what do you say, profit rather. Yeah. Yeah, I think you can think in this So we way. can continue this until we get a comfortable market share in. Yeah. You have to. You can't reverse it. That is the You biggest can. problem now. Okay. Yeah. Got it, sir. Got Yeah, it. if you reverse it, Yeah. then definitely that guy will not be happy. Yeah. True. Yeah. Yeah, got it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Anybody else? I think मदन कातराज मदन जी आपने हाथ उठाया है, आप अनम्यूट करिए, आप सवाल कीजिए. हेलो. हाँ जी. गुड इवनिंग सर, मदन बोल रहा हूँ. हाँ जी. Yes, good बेसिक क्वेश्चन मैंने पूरा सेशन नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन जो थोड़ा स्टार्टिंग में समझा क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहा था मैं. तो बिजनेस एनालिसिस वो किस तरीके से करना चाहिए, शॉर्ट एनालिसिस क्या है,
उसके बेसिस पे। और अभी जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट इंडस्ट्री में, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि खुद को जॉब की मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर लाना है। उसके अगेंस्ट मेरे में स्किल है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, तो मेरे को ट्रेनर बनना है। तो किस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली अभी मार्केट में हम लोग देखते हैं अलग अलग ट्रेनर्स है, तो उसको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए जो स्किल है उसको किस तरीके से सीखना चाहिए, और पर्टिकुलरली किस एरिया में आगे चल के बहुत अच्छा स्कोप है, उसके रिगार्डिंग गाइड आप कर अभी सकते अभी आपका एक्सपर्टाइज किस में है? आप कहाँ जॉब करते हैं? हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में करता हूँ, मतलब प्रोडक्शन में करता हूँ जॉब। कौन सा प्रोडक्ट है, क्या चीज है वो? फूड के प्रोडक्ट है। ओके, फूड तो फूड प्रोडक्ट्स सेल्स में है आप? नहीं, प्रोडक्शन में हूँ, लेकिन आगे चल के किसी पर्टिकुलरली बिजनेस कोच होते हैं या लाइफ कोच होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कोच होते हैं या एनएलपी कोच होते हैं, जो अभी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोच है, ट्रेनर्स है। उस हिसाब से आगे चल के किस सेक्टर में ज्यादा स्कोप रहेगा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। नहीं सर, एक्चुअली आपको मदन जी ये पहला सोचना है कि कौन सा सेक्टर में स्कोप ज्यादा है। उससे ज्यादा आपने जो शॉर्ट सुना है, आपका यस कौन सा है, ओके स्ट्रेंथ आप किस में स्ट्रांग है। ओके ये बहुत जरूरी है आप अपने आप को कि आप क्या अच्छी तरह, मैं बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक का एक कंपोनेंट है, उसका बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर है अगर मैं बताऊं। और अगर मुझे उसके बारे में एबीसीडी पता नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन गुड है, मेरा प्रेजेंटेशन बेहतरीन है, राइट, बट ओके आई कांट डू एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ओके, राइट तो आप अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले कि व्हाट आई एम गुड। ओके, तो इट इज वेरी गुड दैट आपका टीचिंग लाइन में जाने का क्लैरिटी है। तो योर गोल का जो पहला सवाल है वो क्लियर है, यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग प्रोफेशन because राइट you are good at communication and presentation. So that ओके is a nice thing. Now you have to identify the sector is what is your passion. Your passion हो गया अभी कि मुझे किस चीज में मैं बेहतरीन नॉलेज रखता हूँ, कि ओके मैं किस चीज के बारे में कल को आप स्टडी करने के लिए भी जाएंगे, बिकॉज कोचिंग इज सच, मतलब इट इज नॉट दैट इजी। ट्रेनिंग राइट कोचिंग से टफ काम, मतलब आज का तारीख में एटलीस्ट, पुराने जमाने में देखिए टीचिंग इज डिफरेंट, कोचिंग एंड मेंटरिंग इज डिफरेंट। ओके, टीचिंग क्या ओके है, जो सामने है उनमें पढ़ना है और वो बोलना है। मेरा हाथ में जो सिलेबस मिलता है उसको पढ़ के, राइट, आजमाना है और वो बोलना है। सामने वाला सीखा नहीं सीखा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। बट कोचिंग इज नेक्स्ट लेवल बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव दैट पर्सन, राइट and mentoring is further above that. You are responsible overall development, correct? तो राइट इसीलिए आपको कंटिन्यूसली पर्टिकुलर सेक्टर में आपका इंटरेस्टिंग डोमेन कौन सा है, किस चीज में आपका ज्यादा लॉन्गिंग है, यू हैव टू डिसाइड दैट। एंड उसमें अगर आप एक्सपर्ट है तो आज का तारीख में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके। तो उसके लिए जो पढ़ाई करना है या उसके लिए जो भी खुद के इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, उसके लिए आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मार्केट में इस तरीके से इंस्टीट्यूट है या इस तरीके से मेंटर है जो आपको पूरा सब कुछ सिखा से सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारे मेंटर्स है, आपको 1 लाख से लेके 10 लाख तक चार्ज करने वाले मेंटर्स है मार्केट में। एंड अच्छा आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप मेंटर एंड कोचर्स बोल के आप ढूंढ लो, आपको 100 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। ओके, हाँ हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन FIP वी ourselves have got good mentors and coaching people with us. ओके, एंड आपको डिसाइड करना है कि आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है, कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। फॉर दैट कोच जो रहता है, दो ही इज नॉट मास्टर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, बट उसको क्या ड्राइव करना है, ही हैज टू यूज वेरी मेनी टूल्स,
he has to use his मतलब methodology to improve the things. Okay. Okay. आपको मार्केट में कोचेस और मेंटर्स में कोई कमी नहीं है, सिर्फ Okay. आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस डोमेन में जाना है. Okay. तो प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन सीखना है या कम्युनिकेशन सीखना है, दैट इज डिफरेंट एट ऑल. दैट इज अ सेल्फ डेवलपमेंट हो गया. Right. बाद में मुझे अगर टीचिंग कोचिंग लाइन में जाना है तो मुझे अभी दूसरों को ग्रूम करना है, इम्प्रूव करना है. देन मेरा ये जो दो टूल है या क्वालिटीज है, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, हाउ कैन आई इफेक्टिवली यूज दैट, यूटिलाइज दैट टू इम्प्रूव अदर्स. अदर्स मीन्स वो डोमेन आपको अच्छा समझ में रहना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. या मदन जी, एक दो चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा. Yes, कि definitely. मैं आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे लोगों को मेरी सर्विस प्रोवाइड करना है. Right. आप एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं सोसाइटी को कि कुछ चीजें आप सीखें और उसको आप इम्प्लीमेंट करें Yes, फॉर sir. द सोसाइटी डेवलपमेंट्स. Yes, तो sir. इसलिए मैं पहले आपका कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा. दूसरी Yes. बात यह है कि आपने एक आसान से सवाल पूछा था कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, लाइफ कोच बनना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन में जाना चाहिए, कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहिए, एजुकेशनल ट्रेनर बनना चाहिए. ये पूरे ट्रेनिंग सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट्स है. Yes, sir. लेकिन एक सोच मुझे बताना है आपको कि मुझे कौन से सेगमेंट में स्कोप है, से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कौन से सेगमेंट में ज्यादा अच्छी तरह से दे सकता हूं, मैं कौन से सेगमेंट में अच्छी तरह से प्ले कर सकता हूं. दैट इज द Right. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. XYZ सेगमेंट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां पे जाके मैं सस्टेन ही नहीं कर पाया, वहां पे मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तो Okay. उसका कोई मतलब नहीं बनता है सर. Right. तो मतलब इसमें बनता है कि जहां पे अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, लेकिन मैं इस तरह से वहां पे दूंगा कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज मैं क्रिएट कर सकता हूं. Okay. मैं मेरा कैलिबर वहां पे इस तरह से यूटिलाइज करूंगा कि लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा. Right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों ने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप लोगों को एक्सेप्ट करने से कोई मतलब नहीं है. जो भी Okay. स्किल आपको एस्टेब्लिश करना है, डेवलप करना है, वो पहले खुद को इस तरह से एस्टेब्लिश करो कि आप जहां भी जाओगे वहां पे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right. इसलिए मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस स्पॉट का एक मेंबरशिप है. नॉमिनल अमाउंट होता है 1500 रुपीज. दिसंबर एंड से वो बढ़ने वाला है, 3000 रुपये अमाउंट होगा. वहां पे आप जुड़िए. वहां पे आपको अलग अलग बिजनेसेस मिलेंगे पैन इंडिया से. Okay. आपको एक अलग अलग आइडियाज लोगों के साथ बात करने से मिल जाएंगी. Okay. आप किस तरह से प्रोफेशनल पीपल के साथ बात करते हो, वो लोग क्या करते हैं, वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, मैं किस तरह से बिजनेस करता हूँ, सीबीके सर किस तरह से बिजनेस करते हैं. अलग अलग एरियाज में काम करने वाले लोगों के साथ जब हम लोग मिलते हैं ना, बातें करते हैं ना, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें खुद को क्लियर होती है. Yes. मैंने आपको कुछ चीजें बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए. Right. आपका नजरिया दुनिया की ओर देखने के पास जो है वो क्लियर होना चाहिए. और वो Okay. कब होगा, जब आप मार्केट में प्ले करोगे उस टाइम पे. बराबर. आपको अलग अलग बिजनेस ओनर के साथ बात करना चाहिए, उनका बिजनेस समझ के लेना चाहिए, उनको हेल्प करने का एक एटीट्यूड खुद में बनाना चाहिए. जब हम Okay. लोगों की हेल्प करते हैं ना, लोग ऑटोमेटिकली आपको आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं. Yes, sir. दैट इज द थॉट फ्रॉम माय साइड. Great. Great. Thank you, sir. इज एनीवन हैव क्वेश्चन? Thank you, sir. Lot of thanks. या, Both थैंक यू of- मदन. I will call you when you are free. यस सर, यस सर, ऑलवेज वेलकम. हाँ जी डॉक्टर कुमार. यस डॉक्टर कुमार, प्लीज. Yeah, good evening, sir. Good evening. Happy to connect you again, sir. I think after a couple of weeks,
I'm attending this session, and this is one of the most beautiful sessions, sir. And one thing, I'm professor of entrepreneurship and HRM, sir. So I taught these subjects with my and share all the things which is shared here on these platforms. So what I wish, sir, and what I want to share with you all, can I share your link, your sessions links with my students, basically with the Yeah, MBA sure, students? sure, Sure, sir. आप कर sure. Yes, that will be practical experience for all of them, and definitely I'll say that's why I am asking this question. So if you guys you do not have any objection, then I will definitely share with my students, sir. Where are you based at, sir? I am from Varanasi, sir. Varanasi, Okay. and working in one of the engineering college, KIT, Kashi Institute of Technology. It's an engineering college. And last 12 year I'm in teaching, sir, with the management and engineering students. So this is one of the best platform, and I will definitely share all your class links with the students, sir. Absolutely, sir. You can, and I say the objective of FIF is that more and more people should get upgraded themselves, get knowledge and skill upgradation. That is our objective. So the students are the future entrepreneurs, most of them. Right? Correct, sir. Correct. You can Correct. share and let them watch these videos and learn. No issue. Yeah. Okay. Sure, sir. Sir. Thank you. Thank you. Sir, can I ask a question, sir? Sure. Who is that? Sir, yeah. My name is Ajish. I'm from Bangalore. I'm working in software testing in a company. Actually, like now I've worked for like 20 years. So my main fear is like now I should have, if I start any business, now my source of income will stop if I don't work. So that now it is boggling me because I have to run my family and all, right? That expenses and all. So business. So how could you please throw some light how I can just overcome that and parallelly slowly start? Yeah. Thank you. So what your family is doing, ma'am? No. I have a wife and daughter. What my question is, see, I'm working, I get my payment on time. So now I can fulfill like my daughter's education, these things. My fear is like now if I do something on my own, that income will take some time. Correct. So yeah, that fear I'm having. Absolutely. Not only you, Sukumaran, many people will have this problem facing. Absolutely. Because if you are the only source of income for the family, definitely you have to think in that way. Anyway, what the business you are thinking to do, is it related to your current profession? No, actually, I work there. I can't business. What I'm thinking is what I did till now is I just bought some 2-3 real estate and gave it for rent, like houses, and I'm just doing commercial. So like now, I just constructed and give it for house, commercial shops. That's so I fine. want to, yeah. That's fine. Yeah, you arranged some source of additional income, okay? Yeah. So now actually I'm very much interested in agriculture, but I don't have that particular knowledge. But I see that is the future going forward. I'm very sure about it. So I don't have experience like I need to buy that agriculture land and what you discussed about the hydroponics. Those things I am not very aware. So could you please throw some light? Sukumaran, actually, for doing business, there are different skill sets are required. There is a business skill set, what we talk, managing finance, managing people, communicating with people, building relations, right? Building network. These are the qualities required for running a business. To run an hospital, you don't have to be a doctor, okay?
if you have got all these business skill sets and finance, you can construct a beautiful 100-bed hospital, okay, and have some 5-6 ambulance and hire doctors and do the business. Correct. Yes, sir. So as far as knowledge in that particular domain is not necessary, but you have to have other business skills. But particularly for agriculture, it is very difficult to suggest, okay, if you have money, you just go and purchase the land and get into the agriculture business, because it is altogether a different ball game. You have to have, insight about the rural people, the rural market, the rural conditions, the way people work. If you do if you do complete automation, then it is fine. Okay, agriculture. And complete automation is a very costly affair, very, very costly affair. It is in multifold what conventional agriculture people do. Okay. So my suggestion is you should think the domain which you are expert into. Point number one. Point number two, if your family is not an earning member, definitely you will have this domain. This fear ki you can't quit a job. But if you are having a extra spare time to do that particular business, definitely you can start with your wife's name. You can register a company on your spouse name and you can do operations. Absolutely, there is no issue. If there is a condition in your organization, being employed with a company, you can't do your own business. If that is a clause in your appointment agreement, then you can't do on your own. Registration rather. Anyway, you can register a company on your spouse name, and if you get a spare time to do this activity, I think you can go ahead. There is absolutely no issue. And you can start with the part-time jobs. Small assignments. Many people do like that. Okay. Many people being working employed, they do in evening hours and extra time. They do that. There is absolutely no problem. You are not at front end. You will be always at the back end as far as organization is concerned on paper. But you are managing fully. Absolutely no issue. Okay. इसमें मुझे और एक चीज ऐड ऑन करना है सर, कि सर आपको एक चीज का टेक केयर करना है ऑलवेज, कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी जॉब कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट, सर्विसेज और आप जो बिजनेस चलाने वाले हैं उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस इथिक्स है वो एवरी टाइम हम लोगों को फॉलो करना है। अगर ये बिजनेस इथिक्स हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। वो कभी नहीं करना है। यस, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहीं से ना कहीं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इट डजंट मैटर। आपके पास चाहत है, वही सबसे बड़ी चीज है। आपको लगता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जस्ट आप स्टार्ट करो, आप नेक्स्ट 1 ईयर में कंफर्टेबल बन जाओगे कि यस, ये मेरा बिजनेस है और यहां से मैं जो सैलरी में से जितना पैसा लाता हूं उतना पैसा तो मैं साल भर में लेके आ जाऊंगा। लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस से करना है। दैट्स इट। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? सो थैंक यू एवरीवन। टाइम इज कंसर्न 9 बजे है, 2 आवर्स हुए हमारे। क्वेश्चन आंसर्स में भी हम लोगों ने काफी अच्छा आज का सेशन एंजॉय किया। जो मेन सेशन था सीबी कातरावा सर आपने लिया, बहुत अच्छे इनपुट्स आपने बिजनेस ओनर्स के लिए दिए। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इतने सारे इनपुट्स आपने इतने कम समय में डिलीवर किए। मैं जानता हूं कि हर एक टॉपिक का जो डिलीवरी का टाइम है वो कम से कम 4 आवर्स का है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती कि शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारे अच्छी तरह से आपने डिलीवर किए, तो डेफिनेटली आपके लिए अप्रिसिएशन बनता है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय देके यहाँ पे आपने आज का सेशन एंजॉय किया। डेफिनेटली इस सेशन में से आप कुछ ना कुछ चीजें लेके जा रहे हैं।
मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये चीजें आपके लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। ये चीजें जब आप आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो सीखने तक सीमित नहीं रह सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तब उसका इफेक्ट मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स साहब, वो एवरी टाइम बोलते हैं कि आपका जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर है ना, जो सेटिस्फाइड नहीं है आपके पास, उसके ऊपर काम करो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज इंप्रूव जल्दी हो जाएगा। तो आपके बिजनेस में के जो भी अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स है उनको ढूंढो, उनके साथ काम करना चालू करो। आपका बिजनेस मल्टीपल टाइम में बढ़ेगा, मल्टीपल टाइम में ग्रो करेगा, इसका मैं एश्योरेंस देता हूं। बिल गेट्स साहब ने बहुत बड़ा कंपनी बनाया और उनका ये एक्सपीरियंस है कि आप आपके अनसेटिस्फाइड कस्टमर के साथ काम करना चालू करो, डेफिनेटली आपको ग्रो मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन कि हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे इसी टाइम पे 7 बजे मिलेंगे और एक अगला टॉपिक लेके आएंगे। नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग जीएसटी टैक्सेशन के बारे में बातें करने वाले हैं, और मैं जानता हूं कि जीएसटी के बारे में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन के माइंड में अभी भी बहुत सारे शंका है, बहुत सारे डाउट्स है। तो जीएसटी के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग 7 बजे। तब तक मैं पूर्ण विराम लेना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन कि आप सब लोगों ने थैंक यू ऑल, एंजॉय किया। थैंक यू ऑल once again. Thank you, sir.